Faculty for today, CA Lokesh Ji, Chairman Ahmedabad Branch CA Harit Dhariwal, Coordinator for today's session, Samir Ji, and senior citizens and my dear friends. Let's begin the session with ICI motto. Request Shehzad Bhai to start ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you, Shehzad Bhai. Welcoming all to this fifth day of Bank Branch Audit Series. With this, I request Chairman of Ahmedabad Branch, CA Harit Dhariwal, to give opening remarks. Thank you, Anjali Ben. Respected faculty for the session, Lokesh Gupta ji, chief coordinators for this entire event, Sahil, Samir, Nirav, and Ankit, the secretary of the branch, CA Anjali Choksi, and other office bearers who have joined. And dear friends, a very good evening to everyone. So I'll cut it very short today because we are running out of time. I'll just say that we have two important events coming up. We have a very interesting session tomorrow on the GST, which is absolutely virtual. It's not a physical plus virtual. It is only virtual, so you can register yourself. It is on the common mistakes in filing GST 3B and on the compliances to be taken care of before 31st of March. So both the sessions are virtual. It is tomorrow from 10 o'clock. On 27th, we have a very interesting session on GST again on the recent judgment of Supreme Court on limitation. That will be taken by Advocate V. Raghuraman from Bangalore, again a virtual session. And we have e-invoicing, which is again a hot topic from 1st April. E-invoicing is applicable for SSCs having turnover of more than 50 crores. So again, something on the e-invoicing. We have Shri Neeraj Hathe Singh from Signet Technologies. Again, the same topic on 27th of this month. Apart from that, one thing that I want to emphasize is on the bank branch audit sessions for CA students. This Sunday, we have got a very good response. So all your articles, your office staff are most welcome. From 2 to 6, we have two interesting sessions for CA students of bank branch audit. One is regarding the advances, IREC norms, and provisioning as far as the CA students are concerned, very basic language. And second is on the planning and documentation of what documents to be taken for as far as the bank audit is concerned. So CA Anand Sharma and CA Vedant Parikh would be dealing the same virtually again. So you can request your articles to join that sessions. With this, I would again thank CA Lokesh Gupta ji from Delhi for joining the session virtually. Sir, we are very grateful to you, sir. And hopefully, once things get normalized, we invite you to Ahmedabad branch. And with this, I would now request Samir to please introduce sir. Thank you. Thank you, Harit ji. Friends, CA Lokesh Gupta ji has, by qualification, is Chartered Accountant LLB from Delhi University in the year 2001. He have cleared DISA ICI with first rank in India, FFD ICI in 2018. He is a partner in a firm Messrs. Syam S. Gupta and Company from New Delhi. He is having a vast experience of more than 20 years in branch statutory audits of the bank. He has conducted various concurrent audit, stock audit, and internal audit of banks, both in public and private space, with experience of more than 16 years. He has conducted audit of specialized units in banks such as currency chest, even have outsourced area in banks such as agencies involved in refilling ATMs, including audit of ATMs itself. He has been as a guest speaker on statutory audit and concurrent audit of bank branches at a large number of seminars organized by branches and study circles. He is also a speaker on FEMA, FCRA, and international taxes and other areas related to Forex in various seminars. He has provided training to bank staff on operational areas including Forex at a number of occasions.
Even he has a professional areas like current treasurer and internal audit of large number of units in both public and private space and conducting consultancy especially for FEMA and international tax to large number of clients including listed companies and foreign companies. With this detailed introduction, I welcome Lokesh sir. Sir, the floor is yours. Sir. Uh, good afternoon, everybody. Is my PPT visible now? Yes, sir. Great, thank you. Now, first of all, my thanks to the Ahmedabad branch for inviting me here to share this my views on this very important topic of the revised LFAR format. Of course, I have been visiting Ahmedabad earlier also in relation to the concurrent audit course, and it's a very good city. Matlab, I think one of the best cities I've seen as far as you want to live there. Practically, I live in Delhi, but still I like Ahmedabad more. So that's definitely there. Okay. So what I'll try and do is I've got 1.5 hours practically for covering this new LFAR format. What I'll try and do is I'll be basically taking you through all the revised changes which has happened, some important areas which I think need to be discussed, and then thereafter I'll open it to questions and answers, and whatever questions and answers there, and it may be relating to any areas of bank audit, not necessarily only related to LFAR. I'll be glad to answer those queries. Of course, as I requested Harinji that I'll have to leave by maximum 5:45. I have another webinar to attend for the Noida branch, so you'll have to excuse me by then. Okay, so without wasting time, I'll start off, and wherever you have queries, if I would be very okay with answering queries then and there itself. So if anybody can just keep on sharing queries if the members are raising, I'll be glad to answer any queries then and there. Okay. Now, Sir, just sorry to interrupt. Sir, we can yeah, have last 15 minutes for question answers. So right, Sahil and Samir from our team, they will compile the queries and they'll give it to you at the end, sir. So you right, can right. That, just that would be also fine. No problems. thank you. Thank you. Okay. Now, very important, sir. LFAR, of course, the revised format is here. First time we are going to do this revised format. Of course, I think when I look at this LFAR, I have been fortunate enough to be able to cover, do both IS audit from the institute as well as forensics. So when I look at it, really thought that for anybody to really complete this format, he would require the training both as a IS auditor as well as forensics to really compile all the information which the RB expect us to do this time. And I think uh, anybody who is going to do the audit would have to give sufficient time somehow for completing this audit, क्योंकि अभी तक जो हम LFAR के अंदर एक हम उसको मान के चलते थे कि our main audit report is of course the main statutory audit report, और LFAR को हम मान के चलते थे कि बाद में कंप्लीट कर लेंगे या देख लेंगे, तो वो देख लेंगे वाला कंसेप्ट या बाद में देख लेंगे वाला कंसेप्ट would not work now, because you'll have to plan a lot of things before you start off with your audit this time to be able to complete LFAR. और बाद में वाला concept I can assure you you'll not be able to do. So sometimes people tell me कि सर हम तो ऑफिस में आके और बाद में प्रिपेयर कर लेते हैं LFAR, तो practically I don't think it would be practically possible this time. Rather मुझे तो लगता है कि अब की बार आप ऑडिट स्टार्ट करने से पहले you have to do a lot of preparation for this LFAR, right? Now, starting off with my guiding principles on objective, strategy, scope, and coverage, this has been given by the Reserve Bank of India only. I think the most critical out of which is basically the fourth point. If we see, this has been an issue which we have been telling the people whenever I have been fortunate enough to be able to address people. I have been telling everybody कि भाई ये चीज we need to remember. So one, what they have said is that LFAR is not a substitute for your main statutory audit report. This is very important. Sometimes what we have been hearing is that some member found out a MOC which he wanted to put in MOC, some issue, whether it was in relation to an account being an NPA or some other issue, and the branch somehow convinced them कि भाई आप MOC मत डालिए, आप ऐसा करिए कि इसको LFAR में mention कर दीजिए,
And once it is mentioned in the LFER, when it goes to the central statutory auditors, they will be able to basically judge and decide whether a MOC is required or not. And in case they feel there is a requirement of a MOC, then they would definitely put up a MOC. Now, this is something which we always advise others not to do. The reason being that the compilation process of the statutory audit and the LFAR is two different processes. So there is a very good likelihood that by the time the central statutory auditors look at your LFAR, they would have actually closed the financial audit, and they would not be able to take cognizance of your queries, which may be very relevant. They would want to put that query into the in the financial audit, but because the financial audit has been closed by that time, they might not be able to do so. So it is very important that please do not consider LFAR as a substitute to your main statutory audit report. One. Secondly, what RBI has also stated, and which is very important, and again which we have been telling others also, is that in case there is any comment in the LFAR, the auditor should also consider whether a qualification in the main report is necessary. Okay, so it does not mean that once we write it in LFAR it is enough. In case it has a financial implication, then of course considering the materiality aspect, the auditor also needs to see whether it has an impact on the financial statement, on the trueness and the fairness, and of course it would impact the main statutory audit report also. And they have clarified by saying that every qualification, every comment in the LFAR would not mean a qualification in the main statutory audit report. So you'll have to see from each case whether it is required. Of course, the basic line is the basic point which is important here, which we need to understand is that those separate reports हैं sir. One is what we call as a main statutory audit report, and another is what we call as the LFAR. Neither is the substitute of another. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, मेन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस आ सकता है एलएफएआर के अंदर, पर एलएफएआर का रेफरेंस मेन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं जा सकता. तो दैट वी नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो बाय आई थिंक ये आरबीआई ने भी कह दिया, बट अगर वो नहीं भी कहते तो आई डोंट थिंक हमारे को ये बात समझाने की जरूरत थी लोगों को. तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी सर. एम आई ऑडिबल क्लियरली इनफ सर? Sir, if you can increase the voice bit. Okay, no problems, no problems. Okay. Yes, sir. Now, we'll go through the points which are there. Cash verification was earlier there. We'll not get into it. Balances with Reserve Bank of India, State Bank of India. Of course, it says in the bracket for branches with treasury operations. Please do not assume it is only for treasury branches. It is applicable to everybody. So you'll have to look at those comments also. Then money at call and short notice. Generally, it is not applicable at branches. So I'm going to skip. Investment again. Generally, it is not applicable at branches, and it says for branches outside India, but it may be applicable for branches within India also. That you may have to keep in mind. Of course, the chances of that happening are very low. So we'll basically skip it for now. In case there is time later on, we'll definitely come back and cover it. Now we'll start off with advances, which is the major area under LFAR and where major changes have happened. And the biggest change which has happened in LFAR is actually in basically the advances area, and it starts with the bank basically. So if I say that, and it says one, it changes the definition of large advances. Earlier, the definition of large advances was basically 5% of the exposure of the branch or 2 crore rupees, whichever is less. Now it has been changed to 10% of the outstanding aggregate balance of fund base and non-fund base. So it includes both now, fund base and non-fund base, 10% of it or 10 crore, whichever is less. This is now the definition of large advances. So the limit has been increased substantially. One, why it is important for us to understand? Because we have to do 100% sampling of all the large advances. No choice there. You'll have to check all the large advances. Okay. Secondly, it does not mean that once we check all the large advances, our work is done as far as reporting under LFAR goes. I think it is very important that we do the verification of other advances also to be able to cover all the other areas which are stated there. So, and what the RBI is saying that you will have to basically confirm, you will have to mention all the advance accounts which you have taken for sampling.
So starting off with account number, the account name, balance at the year end funded, balance at the year end non-funded, and then the total. And then of course it also says that you will have to mention the total outstanding of the branch and the percentage examined. So basically it is also asking you to tell us कि कितना आपने coverage किया है as far as advances goes. तो very important sir. क्यों इसमें एक मेजर चेंज आ गया, क्योंकि अभी तक हम कुछ एरियाज में लिख देते थे विदाउट चेकिंग की जी यस नो नॉट एप्लीकेबल या जनरली कंप्लाइड विद, जनरली नॉट कंप्लाइड विद. अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. यू विल हैव टू गिव स्पेसिफिक कमेंट्स बेस्ड अपॉन द sample which you have taken, and the samples have to be specifically mentioned here. So this is a very major change, I think, which we have not seen before. We are not used to disclosing our sample like this in the audit report, but this is a specific thing which has come through this LFAR. So that is something which you'll have to keep in mind. Of course, it would also mean, when I look at it, is that you'll have to basically draw a minimum sample before you actually start off with the audit. तो आपको एक सैंपल बनाना पड़ेगा so that you are able to answer all the queries which are going to come in the advances area. तो वो सैंपल आपको पहले ही से ही क्रिएट करना पड़ेगा, and then you'll have to start off with the audit. Otherwise एक मैस क्रिएट होने वाला है बाद में कि आपको पता चलेगा कि कुछ एरियाज के लिए तो आपने सैंपल ही नहीं लिया. So you'll have to then again go back, redo some portion of the audit. तो मैस बन जाएगा. तो my sincere advice to all of you is that you'll have to do some kind of a sampling, at least a minimum sampling, and then thereafter based upon the audit findings you can increase the sample, but a minimum sample needs to be taken to be able to answer all the queries. ठीक है, तो ये आपको करके चलना है. Okay, then this also talks about for all accounts above the threshold, the transaction audit, account specific details needs to be seen and committed. तो ट्रांजेक्शन ऑडिट भी करना है और इसके अलावा आपको अकाउंट स्पेसिफिक डिटेल्स भी चेक करने की जरूरत है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने इशू लिखा है, ट्रांजेक्शन ऑडिट. तो ट्रांजेक्शन ऑडिट टू माय माइंड इज बेसिकली लुकिंग एट द ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट व्हिच of course you cannot do a 100% verification of all the transactions, especially in large advances, because बहुत huge numbers में होंगे, but you will have to do some kind of a checking therein. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अकाउंट को खोल के देखा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते. आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी. बेसिकली दी वेरिफिकेशन पार्ट में ट्रांजेक्शन ऑडिट भी इंक्लूडेड है उसके अंदर. ओके, now lists of account examined for audit we have already discussed. Now based upon this you will have to basically comment on whatever the areas we are going to come out with. ठीक है. Now पहला point जो इसके अंदर आता है, in your opinion has the branch generally complied with the procedures instructions of the controlling authorities. तो सबसे important इसमें word है सर कि procedures instruction of the controlling authority. तो पहला step इसके अंदर क्या होना चाहिए कि as a branch auditor will have to ask for those bank policies, कि बैंक की पॉलिसी क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है. अदरवाइज अगर हम वो पॉलिसी ही नहीं लेंगे तो हम इसमें कमेंट कैसे करेंगे. सी अंडरस्टैंड, वो कह रहा है कि बैंक की आपने पॉलिसी को, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ने पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंस्ट्रक्शंस दिए उसको आप फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, अनलेस एंटिल वी हैव द कॉपी ऑफ दैट पॉलिसीज इटसेल्फ, तो आप कमेंट कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा, बिकॉज इट मे बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बैंक टू बैंक. ऑफ कोर्स द बेसिक थिंग रिमेन्स द सेम, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हर एक बैंक में होंगे, तो वो आपको पहले लेना है, रिकॉर्ड पे रखना है. और जैसे जब मैं एलएफईआर की बात करता हूँ, आई थिंक अब की बार स्पेशली इट वुड मैटर इज दैट टू थिंग्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज रीडिंग एंड अनदर इज रिस्क. रिस्क वी हैव ऑलरेडी स्पोकन इन टर्म्स ऑफ कि कितना आप सैंपल ले रहे हो, तो दैट वुड क्रिएट दैट रिस्क कि कल को उसमें कोई इशू निकल जाता है जो आपने पॉइंट आउट नहीं किया, तो इट वुड क्रिएट अ ऑडिट रिस्क फॉर यू बिकॉज अ स्पेसिफिक सैंपल हैज ऑलरेडी बीन सेटेड बाय यू. And reading is why it is important, because you will have to do a lot of reading this side. Reading in terms of accounting policies, reading in terms of RBI circulars, and reading in terms of lot of documentation which is going to happen. So अब की बार दो R's को आपको बहुत ध्यान से करना है, which is reading and basically risk which you are going to carry in this audit. ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर्स वगैरह आपको लेना है. क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस को आपने लेना है कि क्या पॉलिसी है, किस तरीके से होता है, क्या लोन एप्लीकेशन दी जाती है, उसके साथ क्या अनेक्शर्स दिए जाते हैं, उसके बाद क्या उसमें कोई लोन एप्लीकेशन रजिस्टर बनना है, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट देनी है कस्टमर को, उसके बाद क्या उसको प्रोसेस कैसे करना है, अगर वो रिजेक्ट होता है लोन तो कैसे इन्फॉर्म करना है कस्टमर को, वो सब पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए और सैंपल बेसिस पे आपको वो चेक भी करना है. सेकंड आता है, ऑफ कोर्स इट इज अ ओल्ड थिंग, नथिंग न्यू इन इट, सो आई विल नॉट rush discuss much into it.
दूसरा आता है सर क्विक मोर्टालिटी की बात करते हैं हम। अब क्विक मोर्टालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑफ कोर्स ये कंसेप्ट पहले भी दे रखा था उन्होंने, अब स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर दिया कि एनी अकाउंट व्हिच बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एडवांस विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द फर्स्ट सैंक्शन, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि नॉट ओनली द डेट ऑफ फर्स्ट सैंक्शन, अगर कोई टेक ओवर का केस है तो 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेक ओवर ऑल्सो विल हैव टू कंसीडर एज अ क्विक मोर्टालिटी केस। तो ये आपको जरूर चेक करने की जरूरत है। ओके, दोनों के अंदर क्या इशू होता है, आप इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इशू है वो क्या है कि इसके अंदर एक तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन करनी पड़ती है इन केस एन अकाउंट बिकम्स केस ऑफ अ क्विक मोर्टालिटी। सेकेंडली इसके अंदर हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है बिकॉज द अकाउंट हैज बिकम अ एनपीए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वी हैव टू बेसिकली लुक एट द फैक्ट, look at the possibility of that account being a fraudulent account right from the beginning. So there was maybe a intention to defraud the account, and that is the reason why within a very short span of time of 12 months the account actually slipped into the NPA category. So while auditing you'll have to mention all those accounts, बहुत easy है डाटा निकालना, जो भी fresh NPA हुए हैं साल के अंदर within this year उसकी आपको देखना है डेट ऑफ सैंक्शन या टेक ओवर का केस तो डेट ऑफ टेक ओवर, इफ इट इज लेस देन 12 मंथ्स तो आपको यहाँ पे मेंशन तो करनी है सारे वो केसेस। इसके अलावा यू विल हैव टू कीप दैट पॉसिबिलिटी इन योर माइंड कि वो फ्रॉडलेंट केसेस भी हो सकते हैं, तो उसका है हमारे को उसको थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है। यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी ना सर, और यू वांट मी टू कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली प्योरली? This is fine. Sir, it's much more This is comfortable this. for people, I think so. हाँ जी सर, It will be much more comfortable for people yeah, in a mixed sure. language, sir. I can understand. Okay. Yes, sir. Thank you. Sir. Second point which comes is the credit appraisal के अंदर उन्होंने दो नए points ऐड करे। One is in relation to the interest rate is correctly fed into the system. Very important sir. अब basically क्या importance है इसको अगर हम basically मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या है सर, कोई भी जो CBS सिस्टम है या कोई कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम्स ऑल आर गीगो, garbage in garbage out. If you give them garbage they are going to give you garbage, right? So what is important, what is fed into the system, the data which is fed into the system. Of course one is the transaction part, so in any borrower account one would be the transactions which are fed into the system, and one is a one time exercise which we generally do, which is the creation of that master data basically into the system. अब वो जो master data अगर incorrectly create हो जाता है तो उसके result भी incorrect ही आने वाले हैं। और one of the examples, one of the areas which RBI wants us to specifically comment upon is interest rate। ठीक है, तो कह रहा है जी इंटरेस्ट रेट इज करेक्टली फेड इनटू द सिस्टम। कैसे चेक करना है सर, आप बैंक से एक लिस्ट मांगिए एज ऑन 31 मार्च 2021 अकाउंट विद इंटरेस्ट रेट्स, उसको मैच कर लीजिए विद द इंटरेस्ट रेट इन दी जो भी उनका प्रपोजल्स थे, जो अप्रूवल्स है, चाहे वो रिन्यूअल नोट है, चाहे वो अगर फर्स्ट टाइम सैंक्शन हुआ तो सैंक्शन नोट के अंदर, एक चीज। दूसरा आपको इसमें क्या चेक करना है, चेंजेस इन दी इंटरेस्ट रेट। अब हो सकता है 31 मार्च पे तो वो आपको सही दिख रहा हो, पर जब वो शुरू में दिया गया या बीच में उसमें कुछ गलती कर दी गई हो, तो वॉट एवर हैज बीन डन एज अ चेंज इन दी अकाउंट, मॉडिफिकेशन इन दी इंटरेस्ट रेट, तो उसके लिए आपको बैंक से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि वो आपको एक पूरी लिस्ट दे ऑफ की सारे अकाउंट जिसमें कब कब क्या क्या इंटरेस्ट रेट में मॉडिफिकेशन हुई हो। ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन थ्रू विच यू कैन डू इज, अगर किसी स्पेसिफिक अकाउंट में आपको चेक करना हो तो आप फिनाकल के अंदर स्पेशली आई कैन टेल यू कि एक INTTM करके एक ऑप्शन होती है, INTTM या INTTI हो सकता है ऑप्शन, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, पूरा आपको एक हिस्ट्री देता है कि इस अकाउंट में किस डेट में क्या इंटरेस्ट रेट था, दैट यू कैन यूज। So modification in the interest rate is also critical. Then please remember CBS का एक particular feature है which is कि कोई भी इसमें changes जो है back date से नहीं create कर सकते। Every transaction has to be entered on the present date only. If you want any impact to be given from a different date than the transaction date, तो हमारे को उसके अंदर value dating करनी पड़ती है। तो value dating is possible also in interest rates. तो एक एग्जांपल होता है, अगर मैं आपको कहीं पे एडवांसेस में लेके जाऊं तो EPC के केस में, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट में, वो कहता है कि अगर आपको एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट दिया गया और आपका एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट आपने उसके बदले में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो द इंटरेस्ट रेट इज मॉडिफाइड फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे द एडवांस वाज गिवन। तो यानी वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट तो चेंज करेगा मे बी आफ्टर 300 डेज, पर वो करेगा 300 डेज पहले की डेट से, तो उसको वैल्यू डेट करेगा बेसिकली। So when we are going to check this area, please also check for value dating of transaction, value dating of interest rate.
क्योंकि उसका एक सीरियस इंपैक्ट हो सकता है। तो कीप दैट इन माइंड व्हाइल चेकिंग, प्लीज आल्सो चेक ऑन द वैल्यू रेटिंग कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने डाला, whether the interest rate is reviewed periodically as per the guidelines applicable to floating rate loans linked to MCLR, EBLR। EBLR क्या है सर? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये क्या कंसेप्ट है सर? सबसे पहले सर, अगर हम में से काफी सारे सीनियर मेंबर्स हैं तो उनको पता है कि जी सर पहले कुछ चलता था, BPLR करके कंसेप्ट चलता था इंटरेस्ट रेट में, फिर कुछ बेस रेट करके कंसेप्ट आया, फिर MCLR आया 2016 के अंदर, 2016 के अंदर। उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने, बहुत रिसेंट तो नहीं कहूंगा, 2019 में ये कंसेप्ट आ गया था विच वाज EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो फिक्सेशन ऑफ द बेस है, जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द बैंक इटसेल्फ। अभी तक जितने हम बात कर रहे हैं BPLR या बेस रेट या MCLR, ये बैंक कंट्रोल करता था बेसिकली रेट को, हर एक बैंक का डिफरेंट होता था। EBLR में क्या है कि देयर इज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क which is not in control of the bank itself। जैसे it can be the repo rate of the bank, it can be the GSEC yield, ठीक है? तो ये जो रेट्स हैं ये बैंक कंट्रोल नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बैंक एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द बैंक्स। तो अब ये RBI इज मूविंग एक्चुअली टू द कंसेप्ट ऑफ EBLR। तो ये 2019 में फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अक्टूबर 1 2019 से EBLR को ला चुके हैं। अप्रैल 1 2020 से ये मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी आ चुका है। तो जो नए लोन्स दिए जा रहे हैं वो EBLR में दिए जाएंगे, जो पुराने लोन्स है उनका रिन्यूअल हो रहा है तो वो भी चाहे पहले MCLR में चल रहे थे उनको EBLR में शिफ्ट करना है विद द कंसेंट ऑफ द बोरोवर। तो ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है? और उसके अंदर जो पीरियोडिक रिव्यू होना है, वो पीरियोडिक रिव्यू आपको चेक करना है एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक, वो पीरियोडिक रिव्यूज हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट कम्स इन रिलेशन टू रिन्यूअल्स एंड रोलओवर्स। अब ये एक ऐसा एरिया सर जिसको लेके हमेशा से बहुत कंट्रोवर्सी रही है, और अगर जैसे मैं काफी सालों से इस बैंक ऑडिट में बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दोज फेवरेट एरिया जिसमें हमेशा किसी भी सेमिनार के अंदर 5-6 क्वेरीज जरूर आती थी। तो वो क्या होता था कि शॉर्ट टर्म रिव्यूज। तो हमारा कहीं पे आईरेक नॉर्म्स ऐसा कहता है कि जी अगर लास्ट रिन्यूअल या रिव्यू की डेट से 180 डेज के अंदर अगर रिन्यूअल नहीं किया जाता तो अकाउंट वुड स्लिप इनटू या NPA कैटेगरी। अब इसके लिए बैंक्स ने क्या करना शुरू कर दिया? शॉर्ट टर्म रिव्यूज करने शुरू कर दिए कि भाई 3 मंथ्स का, किसी बैंक ने कहते हैं 6 मंथ्स का अलाउड है मेरे यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म रिव्यू, और वो कर करके वो 1-1 साल 2-2 साल तक अकाउंट को प्रॉपरली रिन्यू करे बिना उनको वो चलाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अकाउंट NPA नहीं है क्योंकि कहीं पे उन्होंने वर्ड लिखा हुआ रिव्यू और रिन्यूअल, ठीक है? तो इसके लिए एक RBI का सर्कुलर आया सर 21 अगस्त 2020 को। ये सर्कुलर सर बड़ा हेल्पफुल है। हमारे लिए तो ये हमेशा से क्लियर था कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं, बट जहां पे भी कंफ्यूजन था तो अब RBI ने उसको और क्लियर करने की कोशिश की कि जी फ्रीक्वेंट रिपीटेड एड हॉक रिव्यू रिन्यूअल्स आर नॉट परमिटेड, इट इज अ कंसर्न, रेगुलेटरी कंसर्न इज देयर। दूसरा उन्होंने कहा नॉन कैप्चरिंग एंड और इनएक्यूरेट कैप्चरिंग और रिव्यू रिन्यूअल डाटा। अभी क्या हो रहा है सर, ये बहुत से ऐसे केसेस देखने में मिले जहां पे एक्चुअली में कोई रिव्यू या रिन्यूअल किया ही नहीं, पर क्योंकि उसको पता है ऑडिटर आके कहेगा कि जी मुझे लिस्ट दे दो कि लास्ट अकाउंट कब रिव्यू या रिन्यू हुए थे सिस्टम के हिसाब से, और उसमें अगर उसको 180 दिन से पुराना केस मिलेगा तो वो उसको NPA में डालने की कोशिश करेगा। तो कुछ मैनेजर्स ने क्या करना शुरू किया कि सिस्टम में रिव्यू या रिन्यूअल की डेट को चेंज कर दिया विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अब वो ऑडिटर 100% केसेस तो वेरीफाई नहीं करने वाला, तो जब वो लिस्ट को चेक करता है तो लिस्ट में कोई भी 180 दिन से पुराना केस उसको नहीं नजर आता। तो दिस वाज अ मॉडस ऑपरेंडी बीइंग यूज्ड, व्हिच इज ऑफ कोर्स नॉट प्रॉपर बट वाज ऑफ कोर्स बीइंग यूज्ड इन सर्टेन केसेस। तो ये भी सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया, नॉन कैप्चरिंग एंड और इनएक्यूरेट कैप्चरिंग ऑफ रिव्यू रिन्यूअल डाटा इज आल्सो अ कॉज ऑफ रेगुलेटरी कंसर्न। तो ये सर्कुलर जरूर रेफर करिए और प्लीज इंश्योर करिए कि इन सब केसेस को आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद कंसेप्ट आता है सर वेदर करेक्ट एंड वैलिड क्रेडिट रेटिंग इफ अवेलेबल ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ बैंक्स बोरोवर्स फ्रॉम RBI accredited credit rating agencies have been fed into the system। नाउ RBI की जो accredited credit rating agencies SCRAs है वो 7 है आज की डेट में, उन 7 में से एक से आपको ये रेटिंग लेनी पड़ती है। अब ये जो रेटिंग है बेसिकली इन्होंने कहा कि करेक्ट एंड वैलिड क्रेडिट रेटिंग हैज बीन फेड इनटू दिस सिस्टम।
Christian Gandhi ji is asking quick mortality whether we have to check for all NPAs or only for fresh NPA during financial year sir. तो फाइनेंशियल ईयर में जो एनपीएज है सर वही आपको चेक करने पड़ेंगे, पुराने केसेस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सर। ओके, और जो रिव्यू रिन्यूअल के लिए कोई मेरे से सर्कुलर मांग रहा है शॉर्ट टर्म रिव्यू के लिए, तो ये सर्कुलर आप देखेंगे मेरी में ये टॉप पे आ रहा है 21 अगस्त 2020 की डेट का सर्कुलर है। यू कैन गो टू दी आरबीआई वेबसाइट, 21 अगस्त 2020 का ये सर्कुलर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें करेक्ट एंड वैलिड क्रेडिट रेटिंग, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि जी भाई हम बैंक के पास कोई डॉक्यूमेंट होगा विच वुड बी स्टेटिंग कि भाई इस कस्टमर की क्या रेटिंग है, उस रेटिंग को हमें कंपेयर करना है विद द रेटिंग फेड इनटू द सिस्टम, देखना है कि वो दोनों मैच करती है कि नहीं करती। तो ये तो हुई करेक्टनेस। वैलिडिटी का कंसेप्ट क्या है, ये वैलिडिटी क्या होती है क्रेडिट रेटिंग में, इफ एनीबॉडी कैन जस्ट शेयर। तो सर वैलिडिटी का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली क्रेडिट रेटिंग के अंदर कि जो वैलिडिटी है वो हर एक की कुछ एक तो डिफाइंड है टाइमलाइंस की विद इन व्हिच द क्रेडिट रेटिंग वुड एक्सपायर। सेकेंडली कोई भी जो क्रेडिट रेटिंग आती है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जी ये जो रेटिंग है इट कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई ऐसा कोई सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फील कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। So what you will have to do basically for validity, you will have to refer to the website of that credit rating agency, see what is the rating and उसमें कोई चेंज तो नहीं आया, चाहे वो डाउनग्रेड हुई हो चाहे अपग्रेड हुई हो, तो वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ऑडिट नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट जो आपको ऑडिट फाइल में मिलेगा, क्रेडिट फाइल में मिलेगा उस कस्टमर की, वो देखना है, उससे आपको उस वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की और वहां पे जाके उसकी वैलिडिटी को चेक करना पड़ेगा। Okay, so that is the word correct and validity of the credit rating. Okay, second, अब इसमें आता है सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट की बात करते हैं। तो एक आता है क्रेडिट फैसिलिटीज हैव बीन सैंक्शनड बियॉन्ड द डेलीगेटेड अथॉरिटी और द लिमिट फिक्स्ड बाय द फॉर द ब्रांच। अब इसके लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक चार्ट होता है जो हर एक बैंक का होता है, जो विच इज पार्ट ऑफ देयर क्रेडिट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, की कितनी पावर ब्रांच को दी गई है फॉर गिविंग लोन्स। जब तक ये चार्ट आप ऑब्टेन नहीं करेंगे जब तक आप इस पे कमेंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस चार्ट शुड बी पार्ट ऑफ योर ऑडिट फाइल, और फिर उसमें आप केसेस चेक कर सकते हैं कि भाई कितने केसेस ऐसे हैं जहां पे वो सैंक्शनिंग जो हुई वो ब्रांच लेवल पे हुई विच वाज बियॉन्ड द पावर ऑफ द ब्रांच, एंड देन वेदर दीज केसेस वर रिपोर्टेड फॉर अप्रूवल टू दी हायर अथॉरिटी, जिसकी पावर थी उनको रिपोर्ट किया गया और उनकी पोस्ट सैंक्शन अप्रूवल ले ली गई कि नहीं ले ली गई, रेटिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो वो आपको इसमें चेक करना है और यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद whether the advances has been disbursed without complying with the terms and condition, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन उसमें सैंक्शन लेटर में से देखनी है, और सैंक्शन लेटर से तो देखनी है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हर एक बैंक में जनरली क्या होता है एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट होता है जो ब्रांच मैनेजर या ब्रांच का जो क्रेडिट मैनेजर वो साइन करके उस फाइल में लगाता है कि भाई हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करवा दिए। तो वो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देखिए, अगर कोई ब्रांच खुद ही कह रही है कि जी भाई मैंने अब ये कंप्लाइंस नहीं हुआ है, तो वो तो आपके लिए रेडीमेड पॉइंट हो गया। और अगर वो ये कह रही है कि जी हमने कंप्लाइंस कर रखा है, तो कुछ सैंपल केसेस में उसको चेक कर लीजिए कि वेदर दैट कंप्लाइंस हैज बीन डन और नॉट। इफ इट इज डन, वेरी गुड, इफ इट इज नॉट डन देन अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट इट हियर। ओके, थर्ड, इसमें लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है, इस बार चेंज आया है ये पॉइंट, वेदर द बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कंपनीज फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। अब हम में से कोई मेरे को अगर बता सके कि उसने अगर ऐसा कोई लोन देखा है जिसमें द पर्पस ऑफ द लोन डिस्क्लोज वाज दैट द मनी वुड बी यूज्ड फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, ठीक है, किसी ने देखा हो ऐसा तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा केस हो सकता है। उसका रीजन क्या है सर, क्यों नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि ये देयर इज अ सर्कुलर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ बैंक लोन्स। तो उसके अंदर वन ऑफ द पॉइंट्स मेंशन्ड इज कि द बैंक इज नॉट अलाउड टू फाइनेंस अगेंस्ट for the purpose of buyback of shares or securities. This is the area which the bank cannot finance for. Okay, तो फिर क्या आरबीआई को पता नहीं था जब ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे डाला कि भाई बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए तो लोन दिया ही नहीं जा सकता? नहीं सर, पता था उनको। तो फिर उन्होंने ये पॉइंट क्यों डाला? तो इसका रीजन ये है सर, दे वांट यू टू डू अ एंड यूज वेरिफिकेशन कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहे कहीं पे। दे हैव टू, यू हैव टू चेक बेसिकली कि पर्पस माइट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज समथिंग एल्स, but the funds were actually used for the purpose of buyback of shares or securities.
अब somebody would ask कि सर ये क्वेश्चन तो आपने बता दिया, इसको चेक कैसे करें? तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था तो मुझे ये भी सोच रहा था कि मुझे भी तो एज एन ऑडिटर इसको आंसर करना है, तो मैं कैसे चेक करूं कि बायबैक के लिए? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी है वो केसेस जहां पे एक्चुअली में बायबैक हुआ है। तो इट कैन बी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी ओनली, नॉन कॉर्पोरेट में सोचने की जरूरत ही नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट को छोड़ दिया, कॉर्पोरेट को पकड़ा। कॉर्पोरेट में आप कैसे चेक करूं कितने केसेस में बायबैक हुआ है? तो मुझे लगा एक सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आपके पास पिछले साल की बैलेंस शीट तो है ही कस्टमर की, उसको कंपेयर कर लीजिए कि आपको एमसीए के अगर मास्टर डाटा देखेंगे तो उसमें उसकी पेड अप कैपिटल नजर आती है। अगर वो पेड अप कैपिटल हैज डिक्रीज व्हेन कंपेयर्ड विद द मास्टर द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, तो आपको पता चल गया कि डिक्रीज हुआ है, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट देयर वाज अ बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। उन केसेस के अंदर आपको चेक करने की जरूरत है कि जी ऐसा तो नहीं है कि जो बैंक लोन का पैसा दैट हैज बीन मिसयूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट्स और दैट बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। ठीक है, वेरी क्रिटिकल है, क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कितने केसेस में बायबैक हुआ है या हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप इसको चेक ही नहीं कर पाएंगे, जनरल वे में आप चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक टेक्निक सोचनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा किस तरीके से मैं आइडेंटिफिकेशन करूं जिसमें मुझे चेकिंग करने की जरूरत है। सपोज करो मुझे कोई केस ही नहीं मिलता जहां पे बायबैक हुआ है, तो हमको फिर अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करें ना कि सर हमने ये चेक किया पर हमारे को किसी भी केस में बायबैक नजर नहीं आया जो मेरे बॉरोवर्स में हुआ है। तो एनीबडी वुड सी इट वुड अंडरस्टैंड कि सबने किसी ने दिमाग लगाया है यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखा नहीं सर नो केस नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्रेडिट फैसिलिटीज रिलीज बाय द ब्रांच विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको देखना पड़ेगा अगेन बैंक की पॉलिसी क्या है। दूसरा, क्योंकि उसमें बैंक पॉलिसी वुड टेल यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने हैं। ठीक है, उसमें फॉर्म नंबर्स लिखे होते हैं, ये फॉर्म्स आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं। आपको सैंक्शन लेटर देखना है, उसमें देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखे थे उसमें कि एग्जीक्यूट करना है, कोई एफिडेविट लेना है, कोई इंडेमनिटी लेनी है, कोई सर्टिफिकेट लेना है सीए से, कोई आर्किटेक्ट से लेना है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लिए गए कि नहीं लिए गए। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिर्फ डॉक्यूमेंट लेना नहीं है, सिर्फ वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आर समथिंग व्हिच इज नॉट परमिसिबल एंड लॉट ऑफ टाइम्स बैंक्स हैव फॉलन इनटू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दोस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट बैंक ले रहा है तो उसको भी एडवाइस करिए कि सर या तो इसको आप फिल करके मुझे दिखाइए, अगर नहीं है आप उसको फिल नहीं कर रहे हैं, आप उसको ब्लैंक रख रहे हैं, तो प्लीज रिपोर्ट इट अप्रोप्रिएटली हियर इन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ओके, देन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, नॉन ऑब्टेंशन ऑफ गारंटीज। चार्जेस का जो रजिस्ट्रेशन है, ऑफ कोर्स जब जैसे हम चार्जेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा इसके अंदर आता है सर मोटर व्हीकल अथॉरिटीज हैं, पोस्ट ऑफिस है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कोई और अथॉरिटी हो सकती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है आज की डेट में वो अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इट इज सरसाई। Now Sarsai is a charge which came under an act called as SURFACI। तो इनिशियली जो ये आया था वो आया था इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में आपको सरसाई करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने इसका चार्ज का दायरा बढ़ाते गए। आज की डेट में जो इसका बेसिकली जो कवरेज है वो ये है कि सर आपको कोई भी तरह की आपने सिक्योरिटी ली हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में ली हो, चाहे मूवेबल एसेट्स की फॉर्म में ली हो, चाहे आपने इंटेंजिबल सिक्योरिटीज ली हो, चाहे इवन हाउस प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे आपने कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट है और कोई फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसके अगेंस्ट हाउसिंग लोन दिया गया, तो वो भी इसका चार्ज यहाँ पे क्रिएट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम दिमाग में रखें कि सरसाई का चार्ज हर एक केस में क्रिएट होना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि सरसाई के अंदर कोई भी अगर मॉडिफिकेशन होती है लिमिट के अंदर, कोई इंक्रीज होता है कोई डिक्रीज होता है, तो उसका मॉडिफिकेशन भी फाइल करना होता है सरसाई। तो नॉट ओनली क्रिएशन एट द फर्स्ट इंस्टेंस, द मॉडिफिकेशन इन द चार्ज आल्सो नीड्स टू बी वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको जरूर अपने को चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर विच इज इन रिलेशन टू लियन ऑन डिपॉजिट। नाउ लियन ऑन डिपॉजिट समथिंग विच हम अज्यूम करके चलते हैं सर लोन अगेंस्ट एफडी, बड़ा इजी एरिया है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बैंक तो 100% सिक्योर्ड है। प्लीज, बैंक तो सिक्योर्ड है सर, बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सर देयर हैव बीन
numerous instances in banking where frauds have occurred against the bank in this area itself. और एक केस अभी कुछ साल पहले बॉम्बे में हुआ था जिसके अंदर द फ्रॉड अमाउंट वाज मोर देन 1000 crores. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एरिया. प्लीज डू नॉट एज्यूम कि भाई साहब मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ हाँ ये तो ठीक है जी, देखने की जरूरत ही नहीं है इसको. अगर ऐसा होता तो आरबीआई को यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती. ठीक है. तो ये आपको दिमाग में रखना. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि हमारे को चेक करना है, वन इज द लियन मार्किंग ऑन द सिस्टम ऑफ कोर्स, और आल्सो दैट जो हम डिस्चार्ज लेते हैं ऑन द एफडीआर रिसिप्ट्स. अब क्या देख रहे हैं हम, बहुत सारे केसेस में जो बैंक्स हैं वो एफडीआर प्रिंट ही नहीं कर रहे, वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एफडीज दे रहे हैं. एफडीआर रिसिप्ट जो जिसमें प्री नंबर्ड एक नंबर होता था वो नहीं इशू कर रहे. इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस. स्पेशली इन केस वेयर देयर इज अ लियन और डिपॉजिट, प्लीज इंश्योर कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, वो प्रिंट करके उस पर डिस्चार्ज नहीं ले रहे, तो प्लीज मेंशन इट थ्रू योर एलएफएआर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एडवांसेस. तो रिव्यू रिन्यूअल की हम पहले भी बात कर चुके हैं, और अगेन इसके अंदर इन्होंने एक बड़ा मेजर चेंज किया है. वर्ड्स तो थोड़े से चेंज हुए पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इससे जाता है. पहले इसमें ये पूछ रहा था कि ये कौन कौन सी ऐसे एडवांसेस है विच आर पेंडिंग फॉर रिन्यूअल बियॉन्ड 0 to 6 months एंड 6 months to 1 year, और अब इसको उन्होंने चेंज कर दिया बिटवीन 3 to 6 months एंड ओवर 6 months. तो कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर है कि एनीथिंग विच इज ओवर 6 months इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. तो वो चीज भी अपने को दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट आता है सर स्टॉक एंड बुक डेप्ट स्टेटमेंट. अब स्टॉक एंड बुक डेप्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो कि भाई हमें चेक करना है कि किस किस में टाइमली आ रहा है, किस में टाइमली नहीं आ रहा. उसके अलावा हमें क्या क्या देखना है कि स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं. हर एक बैंक में एक फॉर्मेट होता है, उस प्रॉपर फॉर्मेट में वो आ रही है कि नहीं आ रही. कंप्लीट डिटेल्स उसमें प्रोवाइडेड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइडेड नहीं है. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी है और मेंशन करनी है. देन कंप्यूटेशन ऑफ डीपी. अब ये पॉइंट उन्होंने नया ऐड किया विच इज वेरी क्रिटिकल, विच इज द डीपी प्रॉपर्ली कंप्यूटेड. तो प्रॉपर्ली कंप्यूटेशन के अंदर देन कंसेप्ट कम्स ऑफ पेड स्टॉक. ठीक है. पेड स्टॉक एक कंसेप्ट आता है. दूसरा पॉइंट आता है कि कई जगह पे वो पेड स्टॉक को कहते हैं जी कि हमारा जो सैंक्शन के टाइम पे एक्सेप्टेड लेवल ऑफ क्रेडिटर्स है वो हम कम कर नहीं करेंगे. तो जो भी पहले तो आप समझिए क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपको ये डीपी की वेरिफिकेशन करनी है. पर आपको ये दिमाग में जरूर रखना है सर, डीपी कैन नॉट बी गिवन, देयर कैन नॉट बी अ डबल फाइनेंसिंग. The DP cannot be given for the purpose for cases कि अनपेड स्टॉक के ऊपर ही डीपी दी जाएगी. पेड स्टॉक के ऊपर ही डीपी दी जाएगी, अनपेड स्टॉक के ऊपर डीपी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड. ठीक है. कोई भी मेथड ऑफ कैलकुलेशन हो बट इट कैन नॉट लीड टू डबल फाइनेंसिंग. जिस चीज के लिए उन्होंने करा ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं करी, उस चीज के ऊपर फाइनेंस नहीं हो सकता. ठीक है. Then very important, not only that calculation of DP is important, updation of that DP in the system is equally important. अगर कोई डीपी कैलकुलेट की गई और उसको सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक अकाउंट है जिसकी लिमिट है 1 crore रुपीस और सिस्टम के अंदर उसकी जो डीपी थी किसी पर्टिकुलर डेट में 80 लाख रुपीस थी. Now if it is not updated in the system, कई बार बैंक्स क्या करते हैं कि डीपी की जहाँ पे डीपी की फिगर भरनी होती है उसमें वो लिख देते हैं, उसके अंदर वो भर देते हैं कि जी मतलब दी डीपी इज इक्वल टू दी लिमिट. तो इन एनी केस अगर लिमिट 1 करोड़ की तो डीपी हमेशा 1 करोड़ ही दिखाएगा उसे. दिस इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि डीपी की कैलकुलेशन अगर हो रही है तो इट हैज टू बी फीडेड इनटू द सिस्टम आल्सो. नहीं तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी डीपी 80 lakhs हो चुकी है, एंड इट वुड नॉट अलाउ, इट डज नॉट हैव टू अलाउ अ ट्रांजैक्शन बियॉन्ड 80 lakhs. क्योंकि उसके लिए तो अगर आपने डीपी इज इक्वल टू लिमिट करके डाल दिया वहां पे तो वो उसके लिए तो हमेशा लिमिट की इक्वल ही रहेगी डीपी. तो नॉट ओनली कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली अगर वो फीड नहीं हुई सिस्टम में तो द पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग इज डिफीटेड. ठीक है. देन रिव्यू रिन्यूअल विदाउट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. इसके लिए भी इन्होंने स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया कि भाई रिव्यू रिन्यूअल विदाउट डॉक्यूमेंट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्टेन करे बिना किया है तो दिस इज नॉट. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आता है सर इसमें whether there exists a system of obtaining reports on stock audit periodically. तो आपको इसके अंदर स्टॉक ऑडिट की जो पॉलिसी है बैंक की
कि किस किस केसेस के अंदर उनके लिए स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी है। जनरली 5 करोड़ से अबव के केसेस में बैंक्स गो फॉर अ स्टॉक ऑडिट। इन केस ऑफ एनपीएस जहां पे 5 करोड़ या उससे ऊपर का एक्सपोजर है उसमें तो स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस आल्सो। इन अदर केसेस इट इज द पॉलिसी ऑफ द बैंक। जनरली मैंने जो देखा 5 करोड़ या उससे ऊपर के एक्सपोजर में बैंक गो फॉर अ स्टॉक ऑडिट। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट यू विल हैव टू लुक एट द पॉलिसी ऑफ द बैंक टू डिसाइड द लिमिट। ठीक है, उसके अंदर फिर जो जो जिन केसेस में स्टॉक ऑडिट नहीं हुआ उसको आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए। दूसरा, इन्होंने एक जो बहुत अच्छा एक एप्रिशिएबल चेंज किया है इस एलएफएआर के अंदर कि जहां पे भी किसी ऑडिट की बात हुई वहां पे उन्होंने ये भी बात करी कि आपका जो ऑडिट है उसकी कंप्लाइंस हुई कि नहीं हुई। बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू अंडरस्टैंड अनलेस अंटिल ऑडिट का कंप्लाइंस हुआ या कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट बनी उसमें कोई इशू पॉइंट आउट हुआ उसका कंप्लाइंस हुआ तो द पर्पस ऑफ दैट एक्सेप्शन रिपोर्ट द पर्पस ऑफ द ऑडिट इज डिफीटेड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरेवर देयर इज अ ऑडिट अल्टीमेटली जो उससे इशू सामने आए उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। तो कंप्लाइंस आपको हर एक जगह पे कमेंट करनी है। अब इन्होंने इसको स्पेसिफिकली भी पूछ लिया आपसे। उसके बाद आता है सर एडवांसेस टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी ऑब्टेंशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसमें एक लिमिट लिखी हुई थी 10 lakhs की। ठीक है, दिस लिमिट ऑफ 10 lakhs was actually removed by the RBI long back, बट क्योंकि एलएफएआर का फॉर्मेट रिवाइज नहीं हुआ था तो वी यूज्ड टू वेरीफाई इट इन रेफरेंस टू 10 lakh limit. Now what the RBI circular says is that it is left to the discretion of the bank कि वो क्या लिमिट अपनी सेट करता है फॉर obtention of these document. तो इसके अंदर आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपकी बैंक की पॉलिसी क्या है फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स। और फिर वो अगर उसके अंदर जो भी पॉलिसी है चाहे वो 25 लाख की हो 50 लाख की हो जो भी उन्होंने लिमिट सेट की है उसके बियॉन्ड ऑल केसेस के अंदर उन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए हैं कि नहीं लिए। अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा सर किसी सेमिनार में कि सर क्या जीएसटी ऑडिट की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी तो इज इट इनफ? मैं कहा नहीं सर, इट इज नॉट इनफ। द रीजन इज कि जीएसटी ऑडिट इज नॉट अ फाइनेंशियल ऑडिट, it is actually audit for some specific point in relation to GST, so it will not be a sufficient compliance of this area. And please understand कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। rather टैक्स ऑडिट के अंदर भी प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी ऑडिट जो है सर जरूरी नहीं है किसी स्टैट्यूट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड तो वही होगा, इट कैन बी डन वॉलंटरीली ऑल्सो। तो अगर इन केसेस के अंदर बैंक में लिखा है कि जी हमारे को इस लिमिट के बियॉन्ड टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट चाहिए, टैक्स ऑडिटेड अकाउंट चाहिए, तो दी ऑडिट हैव टू बी डन एंड द रिपोर्ट सबमिटेड टू द बैंक। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। नाउ व्हाट इज अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट? बेसिकली इज कि ये एक रिपोर्ट है जो कोई सीएस दे सकता है, सीए दे सकता है या सीएमए दे सकता है। 2009 का लास्ट सर्कुलर है जिसमें इसका फॉर्मेट दिया गया था। अराउंड 28 पॉइंट्स है जिसके ऊपर इसकी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, ये कहाँ पे जरूरत होती है लेने की? जहां पे द बोरोवर इज एंजॉयिंग कंसोर्शियम एडवांस और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो वहां पे हमारे को ये रिपोर्ट लेनी पड़ती है। तो हमें इंश्योर करना है कि सब केसेस के अंदर ये हम आइडेंटिफाई करें कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो मल्टीपल बैंकिंग में है या कंसोर्शियम एडवांस में, और उसमें चेक करें कि जी उसकी पीरियोडिसिटी क्या लेनी है, किस पीरियोडिसिटी पे ये रिपोर्ट लेनी है। कई बैंक्स वांट इट ऑन अ ईयरली बेसिस, समबडी वांट्स ऑन अ 6 मंथली बेसिस। तो जो भी पीरियोडिसिटी पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पीरियोडिसिटी से वो रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही इन दी सैंपल केसेस। ओके, और अगर बैंक कंसोर्शियम एडवांस में और वो लीड बैंक नहीं है तो उस केस में क्या होता है, दिस रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द लीड बैंक एंड द कॉपी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीड बैंक द अदर कंसोर्शियम मेंबर बैंक्स। वो उससे ले सकते हैं लीड बैंक से कॉपी से, वेदर लेनी है और रिकॉर्ड में रखनी है, और एज एन ऑडिटर वी हैव टू आल्सो वेरीफाई कि वो ली गई कि नहीं ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर हैज द इंस्पेक्शन और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज चार्ज टू द बैंक बीन कैरिड आउट बाय द ब्रांच एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज ऑफ द बैंक। तो फिजिकल वेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट सर कि एक तो इसमें रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द बैंक ऑफिशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ सच विजिट विद डेट एंड टाइम एंड नेम ऑफ द ऑफिशियल। कई बार हम देखते हैं सर उसमें लिखा होता है रिपोर्ट के अंदर कि सर हम यहाँ पे गए और एवरीथिंग इज ओके। दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिपोर्ट। उसको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे कि जी मैं वहां पे गया, किससे मिला, कौन मिला वहां पे, उसने क्या देखा,
एंड ही हैज टू स्पेसिफिकली मेंशन कि अगर वो एसेट को वेरीफाई करने गया तो उसने क्या एसेट की वैल्यू देखी, क्या एसेट की पोजीशन क्या देखी, एसेट कहाँ पे रखा हुआ, तो वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। सिर्फ वहां पे ऐसा ना हो कि ब्रांच में बैठ के रिपोर्टें बन रही हो और उसकी वेरिफिकेशन ना हो रही हो, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ द सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑडिट. Then next point it asks is whether there is a substantial deterioration in value of the security during financial year as per the latest valuation report in comparison with the earlier valuation report on report. Now substantial deterioration in value, sir. Word as a substantial. So every deterioration in value may not be reported here, sir. You will have to decide what you will consider as a substantial deterioration in value. इसका रीजन क्या है, क्यों ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि सब्सटेंशियल डिटोरिएशन इन वैल्यू में भी इंडिकेटर टू अ फ्रॉड, सर. कि कई बार क्या होता है कि ओवर वैल्यू कर दिया गया एसेट को एट द इनिशियल फेज एट द टाइम ऑफ ऑब्टेंशन ऑफ द लोन, और बाद में जब रीवैल्यूएशन हुआ तो पता चला कि जी अल्टीमेटली लोन जो सिक्योरिटी की वैल्यू है पहले एक्सेस थी, अब उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया. तो दैट मे बी केस ऑफ ओवर फाइनेंसिंग और अ फ्रॉड बीइंग डन अगेंस्ट द ब्रांच. सेकेंडली, अगर कोई बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हो रही है वैल्यू के अंदर एंड द डिटोरिएशन is beyond 50% or beyond 90%, then some IRAC norms guidelines also applies that you must have already covered. तो वो भी आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि उन केसेस में हो सकता है इसका इम्पैक्ट IRAC नॉर्म्स में जाके और अकाउंट की एनपीए क्लासिफिकेशन में जाके उसका इम्पैक्ट आए. ठीक है, ओके. देन it talks about deficiencies in advances. It's a old point, so we'll not really discuss on it. दूसरा इसके अंदर एक नया कंसेप्ट इन्होंने दिया which is in relation to red flag accounts. So what is a red flag account? रेड फ्लैग अकाउंट, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो दी रेलिवेंट सर्कुलर इज द मास्टर सर्कुलर ऑन फ्रॉड्स by the Reserve Bank of India dated July 1, 2016, updated as on July 3, 2017. ठीक है, ये सर्कुलर है जिसको आपको रेफर करने की जरूरत है. ये बेसिकली रेड फ्लैग अकाउंट का कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू अकाउंट्स विद एन एक्सपोजर ऑफ 50 करोड़ एंड अबव टू द इंडिविजुअल बैंक. उस बैंक का जो एक्सपोजर है उस कस्टमर को, उस बोरोवर को, वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है. अभी क्या होता है रेड फ्लैग अकाउंट, बेसिकली एक आरबीआई ने सर्कुलर में, मास्टर सर्कुलर फ्रॉड में एक लिस्ट बनाई ऑफ EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, विच आर एप्लीकेबल टू अ अकाउंट. और इनका पर्पस क्या है, वो बेसिकली क्यों दी गई है लिस्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि इस लिस्ट के अंदर आप एडिशंस भी कर सकता है बैंक, और इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दे कैन मेक देयर ओन लिस्ट. द पर्पस इज कि अगर कोई ऐसी लिस्ट EWS की है और उसके अंदर कोई भी अकाउंट ऐसा है, बोरोवर अकाउंट, जिसके अंदर वो EWS नजर आते हैं, तो व्हाट द ब्रांच हैज टू डू इज टू रिपोर्ट द सेम टू some centralized location agency, some centralized team, फ्रॉड मॉनिटरिंग टीम को वो रिपोर्ट करेगी. वो टीम इसको देखेगी कि ये अकाउंट के अंदर क्या रेड फ्लैग, ये EWS नजर आ रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. इफ इट इज देयर, तो what the team does it, there is a interbank platform which is called as CRILC, CRILC. ये बेसिकली आरबीआई ने डिजाइन किया इस प्लेटफॉर्म को. इट इज बेसिकली an interbank platform. All the banks are part of are basically updating data on CRILC. तो बेसिकली बैंक क्या करता है, क्लिक में जाके ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है कि भाई ये जितने केसेस हैं इसके अंदर ये अकाउंट जो है ये रेड फ्लैग हो गया. रेड फ्लैग का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट फ्रॉडलेंट है. रेड फ्लैग का मतलब ये है कि ये अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है एंड इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो जो दूसरे बैंक्स हैं जो उस कस्टमर से डील कर रहे हैं, दे वुड बी पुट टू गार्ड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द अकाउंट. दे वुड बी केयरफुल. Now, within a specified time frame, which is maximum is 6 months, the bank has to do a analysis, maybe a forensic analysis of this account and decide whether it amounts to a fraud. If it amounts to a fraud, the account has to be declared as a fraud. अगर उनको लगता है कि ये fraud नहीं है, जो ये EWS अपीयर किया इससे ये fraudulent account नहीं बनता, account is okay, so they would remove the red flag status. So this is the concept in short of this EWS and red flag status. Of course, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी further details अगर आपको पढ़नी है तो you can refer to the master circular of frauds, और उसके अंदर इसकी आपको complete details मिल जाएगी including the list of EWS. Okay. Next point आता है सर, they are asking for your comment specifically on
adverse feature considered significant in top 5 standard large advances and which needs management attention. The adverse features in top 5 standard large advances. तो large advances है उसके top 5 आप cases उठा लीजिए और उनमें से adverse feature जो जो आपको नजर आ रहे हैं उसको यहाँ पे specifically आपको report करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद लीजिंग फाइनेंस एक्टिविटी का ये पहले से ही चल रहा है तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस मच ऑन इट। नेक्स्ट पॉइंट जो आया वो आया एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग ऑफ एडवांसेस एंड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। तो पहले क्या होता था, इसमें बड़ा सिंपल सी एक लाइन होती थी सर कि ये हमारे जो आईरेक नॉर्म्स है वो फॉलो हुए कि नहीं है, एंड वेदर द ऑडिटर डिफर्स विद द आईरेक नॉर्म्स एज डन बाय द ब्रांच, और उसको रिपोर्ट करना होता है। अब इसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया, उसमें काफी सारे मल्टीपल पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए। अब बेसिकली उन्होंने सबसे पहला पॉइंट विच इज वेरी क्रिटिकल, उन्होंने कहा हैज द ब्रांच आइडेंटिफाइड and classified advances into standard, substandard, doubtful, loss through the computer system without manual intervention. अब हमें से जो पुराने ऑडिटर्स हैं और पहले भी सेमिनार सुनते आए हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि लोगों को ये कहते हुए कि सर जो ये एज पर दी आरबीआई the classification of accounts as NPA is should be system generated. There should not be any manual intervention. ऐसा हम भी मान के चलते थे। अभी एक सर्कुलर आया सर सितंबर 14 2020 को आरबीआई का, उसमें उन्होंने कहा कि सर ये जो अकाउंट्स है ये ऑफ कोर्स इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, पर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, इस कंट्रोल को अडॉप्ट करने के लिए हम टाइम दे रहे हैं टू दी बैंक्स अप टू 30 जून 2021 कि वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर ले। क्या प्रोसेस उन्होंने बेसिकली बताया कि भाई कोई भी अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन एज एन एनपीए शुड बी सिस्टम ड्रिवन, देयर शुड नॉट बी एनी मैनुअल इंटरवेंशन, वन। सेकेंडली, इफ the account some authority feels, some branch official, bank official feels that there is a requirement of a manual intervention for some xyz reason, तो उस केस के अंदर बेसिकली उनको क्या करना पड़ेगा कि वो अकाउंट को बेसिकली उसका जस्टिफिकेशन बना के प्रेफरेबली सेंट्रलाइज टीम बैंक को बनानी पड़ेगी, उसको वो रिपोर्ट करेंगे। नहीं, सेंट्रलाइज टीम विल हैव टू चेक एंड डिसाइड कि भाई ये ओके है कि नहीं है जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है। दे फील इट इज जस्टिफाइड तो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड दे कैन डू अ मैनुअल इंटरवेंशन। अब मैनुअल इंटरवेंशन करने के लिए उन्होंने कहा कि मेकर चेकर होगा, दो लोग की इंटरवेंशन के बिना ये नहीं करा जाएगा। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उसका आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी जहां जहां पे आपने मैनुअल इंटरवेंशन किया, और वो जो एक्सेप्शन रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे दैट शुड बी फॉर अवेलेबल फॉर ऑडिट बाय कॉन्करेंट एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसका आपको 3 साल तक का जो एक्सेप्शन रिपोर्ट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको इंश्योर करना पड़ेगा इसमें कोई टेम्परिंग ना, ठीक है। तो दिस इज इन शॉर्ट दैट सर्कुलर विच हैज कम। तो बेसिकली इन केसेस में आपको बैंक को कहना पड़ेगा कि सर हमें लिस्ट दीजिए ऑफ ऑल केसेस में देयर आर मैनुअल इंटरवेंशन हैज बीन डन बाय द बैंक, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इन लाइन विद द नॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई, तो ये हम इसको मेंशन कर देंगे। जो सी पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक, और कहीं ना कहीं इट एड्स to all responsibility as an statutory auditor, whether the branch is following the system of classifying the account into SMA 0, SMA 1 and SMA 2, whether the auditor disagrees with the branch classification of advances into standard including SMA 0, 1 and 2, substandard, doubtful, loss asset, the detail of such advances with reason should be given. No, important point is sir, हमें पता है कि स्टैंडर्ड का अंदर भी एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल और एक होता है स्टैंडर्ड अब नॉर्मल, मैं कह सकता हूँ, जिसके अंदर आ जाता है SMA 0, SMA 1 और SMA 2। तो ये जो बेसिकली अभी तक तो हम चेक करते थे बिटवीन SMA बेसिकली बिटवीन स्टैंडर्ड एंड NPA। अब वो कह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड के अंदर भी जो ये SMA 0, 1 और 2 है इसकी भी आपको क्लासिफिकेशन देखनी है और उस पर रिपोर्ट करनी। तो इट एड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑडिटर्स which of which the logic I am not able to understand really, but it बहुत सारा काम हमारे लिए ऐड कर देता है। ओके, अगेन उन्होंने इसके लिए स्पेसिफिकली कह दिया also indicate whether required changes have been incorporated suggested in the memorandum of changes।
तो यहाँ पे भी अगर आप अकाउंट की क्लासिफिकेशन से एग्री नहीं कर रहे तो आपको एमओसी डालना है, वो एलएफएआर में लिखना इज नॉट इनफ। फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने उसमें डाला, लिस्ट द अकाउंट विद आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ ₹10 crores which have been either downgraded or upgraded with regard to their asset classification as non-performing asset or standard asset during the year and the reason thereof। तो यानी कोई भी अकाउंट जिसका इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, उसको अगर उन्होंने अपग्रेड किया या डाउनग्रेड किया, बोथ केसेस आपको चेक करना है और उस पर स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है इस क्लॉज के अंदर। ठीक है, अपग्रेडेशन का एक और क्लॉज है, हम उस टाइम पे इसको डिस्कस भी करेंगे कि वो और क्या हमारे से डिमांड करता है, बट अपने को याद रखना है कि यहाँ पे वो दोनों चीजों के लिए पूछ रहा है, अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने पूछा whether the branch report on cases where accounts have been restructured or rephased during the year to controlling authorities of the bank। अब restructuring और refacement जो है सर, it can both be considered as a restructuring depending upon the definition of the restructuring। और restructuring की अगर मैं definition देखूं जो RBI कहना चाहता है, तो basically कहता है कि सर wherever there has been a some benefit has been passed on to the borrower due to the financial difficulty of the borrower। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टू चीजें हैं इसके अंदर, दो एलिमेंट्स हैं। वन इज कि बेनिफिट हैज बीन पास ऑन टू द बोरोवर, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम किया गया, उसकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम किया गया, उसका पीरियड एनहांस कर दिया गया, उसको मॉरेटोरियम बढ़ा दिया गया, ये सब बेनिफिट है कस्टमर्स को। एंड दैट बेनिफिट हैज बीन गिवन टू दी बेसिकली दी फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ द बोरोवर। तो वो केसेस को हम वो रीस्ट्रक्चरिंग मानते हैं। ठीक है, अब रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं सर। अगर मैं आज की डेट में देखूं तो जो बेसिक सर्कुलर है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो अब June 7, 2019 का है, जो बेसिकली 1500 करोड़ से ऊपर की एसेट्स की बात करता है, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। फिर उसके अलावा एक आता है रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेशन में एग्रीकल्चर के केस में फॉर नेचुरल कैलेमिटीज। फिर एक आता है 2015 के सर्कुलर में जो आईरेक नॉर्म्स का था, उसमें दे रखा है प्रोजेक्ट लोन्स के अंदर जहाँ पे डीसीसीओ चेंज होता है। फिर उसके बाद आता है सर एमएसएमई रीस्ट्रक्चरिंग के केस में, जो हर एक साल एक सर्कुलर आ जाता है। इस बार भी दो सर्कुलर्स हैं जो रेलिवेंट है हमारे ऑडिट के लिए, वो एक आया हुआ है। देन कोविड रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग का आई एम श्योर वो आपको आपकी ब्रांच ने कवर करवा दिया हो, कोविड रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस आए हैं। And then there is another circular which has come in relation to other cases other than MSME, उनको रीस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने कवर किया है, पार्ट ए पार्ट बी करके दो पार्ट्स बनाए हैं, तो उसकी वो सब आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे करनी है। तो रियली इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू एक्चुअली डू एंड गो थ्रू द एक्सरसाइज। और रीस्ट्रक्चरिंग के इतने सारे सर्कुलर्स हैं सर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे बिफोर यू एक्चुअली विजिट द ब्रांच। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है whether the upgradation in non-performing advances is in line with the norms of the Reserve Bank of India। वेरी इंपॉर्टेंट सर, अपग्रेडेशन। और इसके लिए सर मैं जब भी मेरे ख्याल से मैंने कभी अहमदाबाद में सेक्रेटरी ब्रांच ऑडिट का कभी नहीं वो लिया सेशन नहीं लिया, बट जनरली जो मेरे से पहले भी सुन चुके हैं, तो मैंने हमेशा लोगों को एक चीज जरूर बताई है जो आपको हमेशा करनी होती है ऑडिट के अंदर, अपार्ट फ्रॉम फ्यू मोर थिंग्स व्हिच आई ऑलवेज एडवाइज। वन इज सर कि आपको जो पिछले साल एनपीए की लिस्ट है, इस बार की एनपीए की लिस्ट से जरूर कंपेयर करनी है। द रीजन इज उसमें तीन चीजें आपको चेक करनी है। वन इज द डेट ऑफ एनपीए लास्ट ईयर, डेट ऑफ एनपीए दिस ईयर। तो लिस्ट के अंदर तीन तरह के अकाउंट्स आपके बेसिकली बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। एक जो पिछले साल एनपीए थे, इस बार एनपीए नहीं है। एक जो पिछले साल एनपीए नहीं थे, इस बार एनपीए है। और एक जो पिछले साल भी एनपीए थे और इस बार भी एनपीए। तीन तरह के अकाउंट्स आपको उसमें नजर आएंगे। जो पिछले साल भी एनपीए और इस बार भी एनपीए, उसके अंदर आपको डेट ऑफ एनपीए चेक करने की जरूरत है कि डेट ऑफ एनपीए जो चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि वाई इट इज इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि कई बार क्या हमने देखा कि से पिछले साल कोई अकाउंट 31/12/2019 को से अकाउंट एनपीए हुआ था, इस बार उसकी डेट चेंज कर दी गई, 31/12/2020 कर दी गई। तो जो अकाउंट पिछले साल सब स्टैंडर्ड था और इस साल डाउटफुल में स्लिप करना था, वो फिर भी सब स्टैंडर्ड में खड़ा रह गया। तो डेट ऑफ एनपीए, तो पिछले साल भी एनपीए, इस बार भी एनपीए, उसमें डेट ऑफ एनपीए जरूर चेक करनी है। जो पिछले साल एनपीए नहीं थे, इस बार एनपीए, यानी वो नए एनपीए अकाउंट्स हैं जिसमें क्विक मोर्टेलिटी भी हमको बेसिकली चेक करनी है। और दूसरा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इनकम डीड कोग्निशन का कंसेप्ट है।
तो क्या होता है, बैंक्स क्या करते हैं सर कि जिस दिन अकाउंट एनपीए उसके बाद तो उसमें इंटरेस्ट इज ओनली रिकवर्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस, पर आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि उससे पहले जो इनकम ऑलरेडी डेबिट हो चुकी थी अकाउंट को बट जो रियलाइज नहीं हुई थी उसको भी डी रिकॉग्नाइज करना है। तो इस चीज में जनरली हमने देखा है कि बैंक्स डू नॉट रियली प्रॉपरली डू दी डी रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, वो आपको चेक करने की जरूरत है। और तीसरा आता है सर जो अकाउंट पिछले साल एनपीए था इस बार एनपीए नहीं है, तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि सर या तो वो अकाउंट अपग्रेड कर दिया गया, तो उसकी अपग्रेडेशन की वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से अकाउंट अपग्रेड हुए और एज पर दी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अपग्रेड हुए कि नहीं हुए। गाइडलाइंस क्या कहती है अपग्रेडेशन की अगर आप समझे तो एनपीए अकाउंट्स में तो वो कहती है कि सपोज की द अकाउंट हैड 5 इंस्टॉलमेंट व्हिच वाज ओवरड्यू व्हेन द अकाउंट वाज मेड एन एनपीए। आज की डेट में ये पोजीशन है सर अकाउंट में सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ब्रांच मैनेजर वांट्स टू अपग्रेड द अकाउंट बाय सेइंग कि भाई 90 डेज नॉर्म्स है और अब तो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू रह गई हैं, तो अकाउंट हैज टू बी अपग्रेडेड बिकॉज 90 डेज नॉर्म्स मीट नहीं होते। क्या कर सकता है वो अपग्रेडेशन, कोई मेरे को बताए अगर चैट के थ्रू कि अगर अकाउंट को अपग्रेड किया जा सकता है अगर वो 90 डेज नॉर्म्स की जो क्राइटेरिया है, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट हम मान लेते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट से कम रह गई इंस्टॉलमेंट, कोई बता सकता है? No. Very good, sir. So I'm seeing a lot of people saying no. I am very happy. Now, why it is important for us to understand? Nimesh ji is saying only full recovery done. Very good, sir. So basically, what as per RBI, once an account slips into NPA category, जब आपको NPA में slip करना है, तो of course you will have to see basically the 90 days norms. Once the account slips into a NPA category, it can only be upgraded when the complete overdue is recovered. There should not be any overdue amount on the date of upgradation. और रीस्ट्रक्चर अकाउंट में कुछ कंसेप्ट है विच इज इन टर्म्स ऑफ जो अकाउंट रीस्ट्रक्चर्ड है उसके अंदर कंसेप्ट आता है सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्पेसिफाइड पीरियड और व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, वो आपको चेक करना है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हुई है ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड द अकाउंट कैन बी ऑफ कोर्स अपग्रेडेड टू द स्टैंडर्ड कैटेगरी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। और जो हमने चेक किया पिछले साल एनपीए की लिस्ट में थे इस बार नहीं थे, एक तो हो गया जो मैंने कहा अपग्रेडेशन है जिसके बारे में यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, और दूसरे केसेस क्या हो सकते हैं जिसमें फुल रिकवरी हो गई अकाउंट को क्लोज डाउन कर दिया गया, और तीसरे केसेस वो हो सकते हैं जहाँ पे कोई सेटलमेंट हुआ विद द बैंक, कोई राइट ऑफ हुआ, कोई सेटलमेंट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपको ये चेक करने की जरूरत है। और देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट जो अभी हमारे को एलएफआर में नजर आएगा जहाँ पे वो पूछता है कि कहाँ पे केसेस में सेटलमेंट हुआ। तो वन ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली वेरीफाई केसेस वेयर सेटलमेंट राइट ऑफ हैज बीन डन इज थ्रू दिस कंपैरिजन, एंड इसके थ्रू आपको वो केसेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसपे आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। अदरवाइज आप ब्रांच से पूछेंगे तो जनरली वैसे ही जवाब देगा कि सर कोई केसेस नहीं है। तो ये दिस इज वन ऑफ द वेज थ्रू व्हिच वी वेरीफाई एंड थ्रू व्हिच वी आर एबल टू रिपोर्ट इट इन एलएफआर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लीगल एक्शन फॉर रिकवरी। ये पहले भी रिपोर्ट हम करते हैं। इन्होंने आईबीसी का प्रोसेस को यहाँ पे लेके इन्होंने क्या क्या वेदर देयर एनी अकाउंट वेयर प्रोसेस अंडर आईबीसी इज मैंडेटेड बट नॉट इनिशिएटेड बाय द ब्रांच। तो आईबीसी इनिशिएट ही नहीं की ब्रांच ने, जबकि वो मैंडेटरी थी, करनी थी, तो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है। Whether there are any borrowers at the branch against whom a process of IBC is initiated by any of the creditors, including bank. तो IBC initiated by the bank, IBC initiated by any other creditor. इसकी आपको लिस्ट लेनी पड़ेगी बैंक से, और उसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा उसका स्टेज क्या है, कहाँ पे चल रहा है, वो क्या स्टेटस में है, और उसकी वजह से कुछ एडिशनल प्रोविजंस करने की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो वो प्रोविजंस भी आपको चेक करने पड़ेंगे। तो हो सकता है उसका आपको एमओसी भी देने की जरूरत पड़ जाए। Then फिर it talks for about have appropriate claim for credit guarantee, ECGC and others. अब इन्होंने others ऐड कर दिया है इसमें, if any been duly lodged and settled. अब इसके अंदर ECGC is of course the most important, then CGTMSE is important. Then अभी एक नई स्कीम आई है जो कोविड रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने निकाली, जिसमें 20% तक के लोन दे सकते थे एज वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी। वो आई एम श्योर आपने कवर कर लिया होगा इस पार्ट ऑफ द कोविड-19 रिलीफ पैकेजेस के जो सर्कुलर आए, उसके अंदर वो एक गारंटी थी जो एनसीजीटीसी देगा ऑफ 100% ऑफ द लोन अमाउंट, वो
स्कीम है उसके बारे में भी आपको इधर समझना है, पढ़ना है और उसके बारे में कमेंट्स करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा आता है सर वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। दूसरा इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट राइट ऑफ केसेस, ये मैंने आपको बताया कहाँ से ये लिस्ट निकलेगी जब आप कंपेयर करेंगे एनपीए की लिस्ट को पिछले साल की इस साल से। तो वो केसेस आपको मिल गए, उसकी फाइल मंगवाइए, क्या उसमें लेटर है अबाउट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट राइट ऑफ, उसको कंपेयर करिए कि क्या एक्चुअली में हुआ है, और अगर कोई इसमें कोई गलती हुई है, बैंक ने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो उसके बारे में आप स्पेसिफिकली कमेंट करें। उसके बाद एक नया पॉइंट आया इसमें, इज द ब्रांच प्रॉम्प्ट इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑब्टेन्ड फॉर रिकवरी फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स, गिव एज वाइज एनालिसिस ऑफ डिक्रीज ऑब्टेन्ड एंड पेंडिंग एग्जीक्यूशन। अगेन सर ये नया पॉइंट आ गया था, बड़ा ही खतरनाक पॉइंट आ गया मेरे हिसाब से सर। आपको अब मांगना पड़ेगा बैंक से एक लिस्ट कि भाई कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें आपने लीगल केसेस करने के बाद आपको डिक्री मिल गई, उसका स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, कितनी एग्जीक्यूट हो गई है, कितनी पेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन है और क्यों पेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन है, वन। सेकेंडली देन एज वाइज एनालिसिस ऑफ द डिक्री, जो डिक्रीज है उसका आपको यहाँ पे एज वाइज एनालिसिस भी देना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नया पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया है और वो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वेदर इन केसेस कंक्लूडेड द रिकवरीज हैज बीन प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो पॉलिसी ऑफ द बैंक इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई कहता है सर मेरी तरफ से कुछ नहीं है, आप अपनी पॉलिसी बनाइए कि आप कहाँ पे अप्रोप्रिएट करेंगे, प्रिंसिपल में करेंगे, इंटरेस्ट में करेंगे, किस परसेंटेज में करेंगे, 100% करेंगे, और जो भी आप पॉलिसी बनाए उसको कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करें हर एक केस में। तो प्लीज चेक कि वो क्या पॉलिसी है और उसको कॉन्सिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर हेल्ड एट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स। उसके अंदर वो पूछता है कि जी वेदर द ऑडिटर्स हैव रिसीव्ड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एज आज बाय देम ऑन टेस्ट चेक बेसिस एंड सेटिस्फाइड देमसेल्व्स, रिपोर्ट द एक्सेप्शंस इफ एनी। तो ये आज की डेट में बड़ा कॉमन हो चुका है कि जी आप ब्रांच में ऑडिट करने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वो कहते हैं जी किसी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर पे रखे हो, तो वहां से आपको डॉक्यूमेंट मंगवाने पड़ेंगे सैंपल बेसिस पे और उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कई बार वो लोकल होता है, अगर जो प्रोसेसिंग सेंटर है तो वहां पे वो कह देते हैं कि सर आप वहां पे विजिट कर लीजिए, तो वो भी कर सकते हैं आप ऑफ कोर्स, ठीक है, और उसमें आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा वो अपॉर्चुनिटीज, तो उस केस में आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वो आपको अलाउ नहीं कर रहे या आप नहीं वेरीफाई कर रहे, ठीक है। अदर मेजर डेफिशिएंसी इन क्रेडिट रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन दैट यू हैव टू मेंशन हियर व्हिच आर नॉट कवर्ड स्पेसिफिकली बाय एनी ऑफ द अर्लियर पॉइंट्स। Now this covers basically the advances area, fund based basically, non fund based के लिए उन्होंने फिर अलग से पॉइंट्स लेके आए हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया सर, इसमें एक बड़ा छोटा सा उन्होंने चेंज किया है और इसका बड़ा मेजर चेंज आ गया है इससे, मेजर, ठीक है। लिस्ट ऑफ बोरोवर्स वेयर विद डिटेल्स ऑफ एलसी डिवॉल्व्ड और गारंटीज इनवोक ड्यूरिंग द ईयर, पहले यहाँ पे वर्ड था एट द एंड ऑफ द ईयर, बड़ा मेजर चेंज हो गया इस वर्ड के चेंज से। एंड ऑफ द ईयर मींस लेट 31 मार्च को अगर ऐसा हो गया, और अब हो गया ड्यूरिंग द ईयर, यानी जितने भी केसेस हैं पूरे साल के अंदर जहाँ पे एलसीज डिवॉल्व हुई है, गारंटीज इनवोक हुई, उनकी कंप्लीट लिस्ट, हो सकता है वो कस्टमर से रिकवर भी हो गए, उसके बाद भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है वो कंप्लीट लिस्ट लेके बैंक से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर किसी कस्टमर के केस में फ्रीक्वेंट एलसी डिवॉल्वमेंट हो रही है, गारंटीज इन्वोकेशन हो रही है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा इट में बी शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस, दैट अकाउंट इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस। तो आपको अपनी ऑडिटर्स की निगाहों से भी उसको चेक करने की जरूरत है अकाउंट को। उसके बाद उन्होंने कहा लिस्ट ऑफ बोरोवर्स वेयर द एलसी हैव बीन इन्वॉल्व्ड और गारंटीज हैव बीन इन्वोक्ड बट नॉट पेड विद अमाउंट देयरऑफ। तो कौन कौन सी पेड नहीं हुई, अभी ऊपर था कि जहाँ पे रिकवर भी हो गए वो भी मेंशन करना है, और यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने पेमेंट नहीं करी है अभी तक, तो आपको इसके लिए फिर आईरेक नॉर्म्स के सर्कुलर को फिर से रेफर करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई कस्टमर है जिसकी कोई सीसी लिमिट भी है और एलसी लिमिट भी है, और एलसी लिमिट में कोई डिवॉल्वमेंट हो गई है, तो दैट डिवॉल्वमेंट हैज टू बी डेबिटेड टू द सीसी अकाउंट ऑफ द कस्टमर। इफ इट इज नॉट सो डेबिटेड देन द आरबीआई सर्कुलर सेज दैट जो अगर उन्होंने एक एलसी डिवॉल्वमेंट अलग से अकाउंट खोल लिया और सीसी अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो जो एलसी डिवॉल्वमेंट अकाउंट है उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा
कि अगर ये डेबिट कर देते हैं हम ऑपरेटिव अकाउंट को तो क्या होता है, और उसके हिसाब से आईरेक नॉर्म्स को आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे तो वो अकाउंट के लगेगा, पर जब दोनों मिला के देखेंगे तो हो सकता है कि वो अकाउंट एनपीए नजर आएगा। तो उस तरीके से आपको इसको चेक करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज वर अलाउड subsequent to development of LCs or invocation of these. Important word is subsequent to. Interchangeability allow की sir subsequent. This means कि will have to verify all cases जहाँ पे ये हुआ पहले तो और उसके बाद कोई changes हुए, of course, ठीक है। अब इसके अंदर important क्या है सर, अगर वो फंड बेस से नॉन फंड बेस में इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ की है तो मुझे इतनी चिंता नहीं है, पर अगर नॉन फंड बेस से फंड बेस में अलाउ की गई है तो इट मे बी ड्यू, इट मे बिकम अ केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ईच एंड एवरी केस। एवरी केस माइट नॉट बी अ रीस्ट्रक्चरिंग, लेट मी आल्सो मेंशन दैट, but it might be a case of a restructuring, and that you need to keep on verifying in every case where this interchangeability has been allowed after invocation or development of LC. सस्पेंस एंड सन्ड्री, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है सर, सस्पेंस और सन्ड्री के अंदर कि 90 डेज से ऊपर के जितने एंट्रीज हैं उनको तो स्पेसिफिकली आपको रिपोर्ट करना ही है। इसके अलावा एनी अनयूजुअल आइटम्स इन दीज अकाउंट, एग्जांपल उन्होंने दे दिए लॉसेस नॉट प्रोवाइडेड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपको स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरिया ऐसा है जो हाईली मिसयूज हुआ है ऑफिस अकाउंट्स। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे अकाउंट जो है वो एनपीए से बचने के लिए उनको यहाँ से कुछ एंट्रीज को पास ऑन किया गया यहाँ से, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे कोई ऐसे कस्टमर के अकाउंट में फ्रॉड हुआ, कस्टमर ने केस कर दिया बैंक के अगेंस्ट, बैंक ने सेटल कर दिया, कस्टमर को कंपनसेट कर दिया, वो कस्टमर का जो कंपनसेशन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ सस्पेंस में, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट शुड बी हैव बीन टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह की एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। तो 90 डेज से अबव की एंट्रीज एंड अनयूजुअल नेचर ऑफ एंट्रीज दोनों आपको चेक करनी पड़ेगी, और हो सकता है इसके लिए आपको एमओसी भी देने की जरूरत पड़ेगी। ओके, देन डॉर्मेंट एंड इनऑपरेटिव अकाउंट काफी सिमिलर है पिछले साल से, तो इसको हम स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर एफसीनार कैपिटल बी। एफसीनार कैपिटल बी ये क्या अकाउंट होता है, बेसिकली फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट स्कीम कहते हैं इसको। इट इज इन फॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट, minimum tenure 1 year, maximum tenure 5 years, and it is denominated in a foreign currency. So your fixed deposit जो होता है foreign currency में denominated होता है, and it is allowed to be opened by a person who is either a NRI non-resident Indian or person of Indian origin PIO as per FEMA guidelines. Now नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है, आज के डेट में जो फिक्स डिपॉजिट है उसको ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे रखा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी the deposit is automatically renewed for a further period, जो ओरिजिनल टर्म था उस उतने पीरियड के लिए फिर से उसको रिन्यू कर दिया जाता है on the revised interest rate applicable on the date of renewal. Now in case of FCNRB, the what the famous guideline says is that once the FD is opened, if that customer status changes from NRI PIO to resident, then the FD may be continued till the date of maturity, and thereafter the FD have to be compulsorily closed. So at the time of renewal of the deposit, the bank needs to ensure that the customer continues to be a NRI or PIO. If it does not, the branch does not check, or after checking that they do not continue to be NRI or PIO, still allows the renewal of the deposit, it is a violation of the FEMA guidelines and needs to be reported. Okay, new point. नेक्स्ट पॉइंट जो आया, ये भी एक नया पॉइंट आया सर। ये क्या कहता है, इज द ब्रांच कंप्लाइंग विद द रेगुलेशन ऑफ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स एंड लेवी ऑफ चार्जेस ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगाए जाते हैं सेविंग्स अकाउंट में, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। अब गाइडलाइंस कहाँ पे लिखी हुई है, ये दो सर्कुलर्स मैं आपको रेफर कर रहा हूँ सर। ये सर्कुलर क्या कहता है कि सपोज कीजिए कोई अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, तो the bank has to first issue a notice to that account holder saying that कि आपके अकाउंट में minimum balance maintain नहीं हो रहा, and they have to give him a time frame of at least minimum 30 days for rectifying the default. If the customer does not rectify the default within the time frame given by the bank, minimum of which should be 30 days, then the bank can levy minimum balance charges. One,
Secondly, that minimum balance charges should be proportionate to the amount of नॉन मेंटेनेंस। मतलब अगर किसी कस्टमर ने अगर मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो है किसी कस्टमर का सपोज कीजिए कोई मिनिमम बैलेंस जो है वो 5,000 का और कोई कस्टमर 4500 मेंटेन कर रहा है और कोई कस्टमर 1,000 रुपए मेंटेन कर रहा है 1000 रुपीज, दोनों के चार्जेस सेम नहीं हो सकते क्योंकि एक का जो डेफिशिएंसी है वो 500 रुपए की है 500 रुपीज की और एक की डेफिशिएंसी 4000 रुपीज की है, तो दोनों को सेम लेवल ऑफ चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जी चार्जेस कैन नॉट बी लेविड इन नॉन इनऑपरेटिव अकाउंट और बीएसबीडीए अकाउंट, बेसिक सेविंग्स जो अकाउंट्स होते हैं उन पे ये नहीं लगाए जा सकते। इसके अलावा किसी अकाउंट को नेगेटिव बैलेंस में नहीं लिया जा सकता फॉर ड्यू टू मिनिमम बैलेंस चार्जेस, जीरो तक ले जा सकते हैं, नेगेटिव में नहीं जा सकते। ठीक है सर, ये बिल्स पेपर सन्ड्री डिपॉजिट पहले भी था, स्किप दैट। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, इसका सर सबसे बढ़िया तरीका कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का जो है चेक करने का, आप लीगल एक्सपेंसेस हेड को जरूर चेक करिए, बैंक के प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुआ उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज को चेक करिए। अगर उसमें कोई आपको केस नजर आता है वेयर द केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द बैंक, then please verify that case and see whether there is any claim against the bank which they have not acknowledged as a debt and which would mean that it has to be disclosed as a contingent liability। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं स्किप कर रहा हूँ, इट इज सिमिलर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट आता था गोल्ड एंड बुलियन सिक्योरिटी आइटम, इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है। गोल्ड बुलियन जो है सर आज की डेट में जनरली आपको बैंक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि पहले आप देखते थे फ्रीक्वेंटली कि बैंक ब्रांचेस वर सेलिंग गोल्ड कॉइन्स को सेल करते थे। आज की डेट में दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कोई भी बैंक ब्रांच गोल्ड को सेल नहीं कर सकती। बट हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस के अंदर पुराना स्टॉक रखा रह गया और जो सेल नहीं हुआ था, तो उसकी वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर देन इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी आइटम्स लाइक टर्म डिपॉजिट रिसीव्ड, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक बुक्स, ट्रैवलर्स चेक, गिफ्ट चेक्स एक्सेट्रा, वो आपको चेक करनी है और अगर कोई मिसिंग आइटम्स है उसमें तो उसको भी अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स एंड रिकॉर्ड, इसमें दो मेजर चेंजेस आए हैं सर। ओके, वी हैव 10 मिनट्स। सो उसमें बेसिकली दो मेजर चेंजेस क्या आए, वेदर देयर एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनुअल और अदरवाइज यूज एट द ब्रांच व्हिच आर नॉट इंटीग्रेटेड विद द सीबीएस। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, प्रैक्टिकली आपसे आईएएस ऑडिट करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। और क्या है इंटीग्रेशन, एक्चुअली दिस लाइंस हैज एक्चुअली कम विद दैट स्कैम ऑफ द पीएनबी व्हिच हैपेंड इन द नीरव मोदी स्कैम। बेसिकली यहाँ पे वो स्विफ्ट सिस्टम वो इंटीग्रेटेड नहीं था सीबीएस के साथ और जिसकी वजह से वो फ्रॉड हो पाया, तो यहाँ पे इसलिए वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच से एक लिस्ट मांगनी पड़ेगी ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर व्हिच दे आर यूजिंग, और आपको देखना पड़ेगा कि उस सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन सीबीएस से क्या है। क्या सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन है, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, उसका डाटा फ्लो ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा सीबीएस में, तो आपको मैनुअल वो मेंशन करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन नहीं है। अगर पार्शियल इंटीग्रेशन है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आपसे वो आईएएस ऑडिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर अ लिमिटेड लेवल। देन अगेन आईएएस ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिंग ऑन दी ब्रांच अकाउंट्स एंड पेंडिंग कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। सर इस बार दी आईएएस ऑडिट इज वेरी क्रिटिकल, व्हाई, बिकॉज़ देयर हैज बीन अ मर्जर ऑफ लॉट ऑफ बैंक ब्रांचेस विद अदर बैंक्स, तो उसमें डाटा माइग्रेशन ऑडिट इज वेरी क्रिटिकल। क्योंकि क्या होता है सर, इवन अगर वो दोनों सेम सॉफ्टवेयर पे थे, देन ऑल्सो दी टेबल्स, दी डाटा, वो हर एक डाटा टेबल्स में मेंटेन होता है, हर एक का टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चरिंग जो होती है हर एक बैंक की अलग होती है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिसाइड करता है। तो जो डाटा माइग्रेशन इट इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग जॉब और उसके अंदर गलतियां भी होती है और इसलिए उसका डाटा माइग्रेशन ऑडिट भी होता है। तो इस बार जब आप बैंक ऑडिट करने जाएंगे तो डाटा माइग्रेशन ऑडिट वुड बी अ क्रिटिकल फैक्टर व्हिच यू नीड टू लुक आउट। ठीक है, देन एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक्सेप्शन रिपोर्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट्स ऑब्टेन जनरेट की जा रही हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। फिर उसके बाद डेली एक्सेप्शन, कंप्लायंस ऑफ द डेली एक्सेप्शन रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो वो आपको कंप्लायंस भी चेक करनी है बाय डूइंग सैंपल चेकिंग कि उसकी कंप्लायंस हुई है कि नहीं। Then it says whether the bank has laid down procedures for manual intervention to system generated data and proper authentication of the related transaction arising therefrom the along with proper audit trail of manual intervention has been obtained। तो आपको ब्रांच से मांगना पड़ेगा कि भाई किस किस केस में आपने जहाँ पे सिस्टम जनरेटेड एंट्रीज होनी चाहिए वहां पे मैनुअली इंटरव्यू किया। जैसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मैनुअल डेबिट किया गया इंटरेस्ट अकाउंट को, मैनुअल डेबिट किया गया इनकम अकाउंट को,
या कोई चार्जेस को रिवर्स कर दिया गया फ्रॉम दी इंटरेस्ट अकाउंट, या कोई क्रेडिट किए गए इंटरेस्ट अकाउंट में मैनुअली क्रेडिट एंट्रीज की गई, तो इसकी लिस्ट आपको बैंक से लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैनुअल एंट्रीज की गई है वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डन थ्रू द सिस्टम ओनली, ठीक है। और फिर उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा टू चेक कि वो मैनुअल इंटरवेंशन करेक्ट थी और अप्रोप्रिएट थी, और उसमें किसी से अगर अप्रूवल लेने की जरूरत थी तो वो अप्रूवल भी ली गई कि नहीं। देन इट टॉक्स अबाउट डाटा इंटीग्रिटी। तो ये तो सर बिल्कुल स्पेसिफिकली आईएएस ऑडिट का पॉइंट है, डाटा इंटीग्रिटी को वेरिफिकेशन कैसे होगा, including no back-ended strategies, etc., which is used at MIS and HOC level. So this would be a challenging area. I am sure a lot of people will not be able to really comment upon it. तो ये एक चैलेंज एरिया आई थिंक जो बिना आईएएस ऑडिट समझे हम प्रैक्टिकली करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। देन फ्रॉड्स की ये बात करता है, फ्रॉड्स के अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली अब आपसे पूछ लिया कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड जो होता है FMR 1 होता है जिसके थ्रू फाइलिंग होती है, वो दैट इज द फॉर्मेट। ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, एक XBRL सिस्टम है आरबीआई ने जो प्रोवाइड किया, उसके थ्रू होती है विद इन 3 वीक्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड। और 5 करोड़ या उससे ऊपर के फ्रॉड्स होते हैं तो एक फ्लैश रिपोर्ट के थ्रू रिपोर्टिंग होती है विद इन 1 वीक ऑफ द फ्रॉड प्लस दैट FMR 1 फाइलिंग विच वुड हैपन इन 3 वीक्स। और अगर वो सस्पेक्टेड लाइकली फ्रॉड केसेस है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है सीनियर मैनेजमेंट को। तो वो प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, उसकी लिस्ट आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी ब्रांच से कि कितने केसेस में आपने सीनियर मैनेजमेंट को कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग की है ऑफ एनी सस्पेक्टेड और लाइकली फ्रॉड केसेस। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने डाला, इंस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड बेस्ड ऑन योर ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट्स ऑन द पोटेंशियल रिस्क एरियाज व्हिच माइट लीड टू प्रिपरेशन ऑफ द फ्रॉड्स। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए उसके साथ, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय द बोरोवर, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, then financial document like invoices, debtors list, stock statement, trade credit document, shipping document, work orders, encumbrance certificates, use of current account transaction outside consortium। तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए सर। This practically means that you have to do a forensic analysis of the fraud cases and report on that forensic analysis, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा आईएएस ऑडिट भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और फॉरेंसिक ऑडिट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द क्लॉजेस वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग नाउ फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ द फ्रॉड केसेस एंड टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर से केवाईसी अर्ली मॉर्निंग फ्रेमवर्क की जो बात हो रही है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस द रेड फ्लैग अकाउंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। देन द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच कम्स इज केवाईसी एएमएल कंप्लायंसेस। तो इसमें केवाईसी तो फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जनरली जो नए अकाउंट्स खोले जाते हैं वो ब्रांच लेवल पे नहीं खोले जाते, सेंट्रलाइज लेवल पे खोले जाते हैं, तो वहां पे चेकिंग होगी। डी केवाईसी यू कैन वेरीफाई द प्रोसेस। एएमएल के अंदर सर बहुत सारी कंप्लायंसेस है, यू हैव टू सी इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। वन ऑफ द न्यू सर्कुलर्स व्हिच हैज कम इज इन रिलेशन टू ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। एक यहाँ नया सर्कुलर आया 6 अगस्त 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी कस्टमर की लिमिट चल रही है किसी बैंक के साथ तो कोई और बैंक उसका करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, ठीक है। तो ये आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ न्यू सर्कुलर व्हिच हैज कम दिस ईयर। और इसके अलावा एएमएल में जो कंप्लायंसेस वो होती हैं जो रूल 114B ऑफ द इनकम टैक्स रूल से आती है वन। देन कुछ केसेस हैं जैसे डीडीपीओ इन कैश, रीपेमेंट ऑफ एफडी इन कैश एक्सीडिंग 20,000, एनकैशमेंट इशू ऑफ फॉरेक्स इन कैश बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, all cash transaction of more than 5 lakh which are intimately connected transactions, suspicious transaction reported। ये कुछ compliance है जिनको आपको sample cases पे verify करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। देन मिसलेनियस के अंदर उन्होंने डाल दी रिपोर्ट्स की लिस्ट डाल दी। पहले भी वो पूछता था क्या क्या ऑडिट हुए हैं और उसकी रिपोर्ट आपने ऑब्टेन कर लिया और उनके पॉइंट्स को आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो वो अब उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी रिपोर्ट डज नॉट मेक एनी रेफरेंस। और एक MIS एट कॉर्पोरेट ऑफिस लेवल अगेन ये एक चैलेंज एरिया है सर। मुझे नहीं पता ये MIS एट, मुझे कहीं ना कहीं इसमें लिस्ट लेनी पड़ेगी पहले तो बैंक से कि कौन कौन सी MIS है जो कॉर्पोरेट ऑफिस बनाता है जिसमें डाटा आप प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टैंड अंडर CBS इज दैट द डाटा ओनर इज नॉट द ब्रांच, डाटा ओनर इज एक्चुअली द सेंट्रलाइज्ड ऑफिस and the branch takes that data from the centralized location and works on that data, returns that data back to the centralized location। तो आपको ये स्पेसिफिक कमेंट के ऊपर आपको लेना पड़ेगा ब्रांच से और फिर डिस्कस करके इसके बारे में कमेंट डालना है, ठीक है। फिर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए पहले भी हुआ करता था, अभी भी है। फॉरेक्स के लिए एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन है जो अगर आप फॉरेक्स ब्रांच कर रहे हैं
कोई भी बैंक की 3 तरह की ब्रांचेस होती हैं सर, जब हम फॉरेक्स के रिलेशन में देखते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी आर बेसिकली नॉन फॉरेक्स ब्रांचेस। जब हम जाएंगे ऑडिट करेंगे तो ऐसे नहीं मत पूछेगा जी आप फॉरेक्स करते हैं नहीं करते, प्लीज आस्क देम वेदर यू आर अ कैटेगरी सी ब्रांच, कैटेगरी ए ब्रांच, कैटेगरी बी ब्रांच। कैटेगरी सी है तो नॉन फॉरेक्स है, ये एरिया एप्लीकेबल नहीं है। कैटेगरी ए या बी है तो वो दोनों ही फॉरेक्स ब्रांचेस है, दोनों के अंदर ही आपको फॉरेक्स का वेरिफिकेशन करना है। Okay, then in ये points आते हैं which is in relation to asset recovery branches. Then clearing house operations की बात करता है वो, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेट है जो हर एक साल वैसे हम लेते ही थे, जो लार्ज एडवांसेस के केस में उसका ये फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है, उतना ही लार्ज है जितना पहले था। तो आपको ऑब्टेन करना है ब्रांचेस से, कोशिश करिए इसको जल्दी से जल्दी ऑब्टेन करिए, क्योंकि आपको 100% वेरिफिकेशन करना है और इसमें बहुत सारा डाटा है विच वुड हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग ऑडिटिंग दैट ब्रांच। और एनी केस वो इसलिए भी लेना जरूरी है कि जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको इसके अंदर जो फिगर्स हैं उसको आप साथ ही साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बाद में उसको करने के लिए फिर से आपको फाइल उठानी पड़ेगी और उतना टाइम आपके पास जनरली ऑडिट में नहीं होता, ठीक है। Okay. Now, I think I am well within my time. I have covered the LFAR basically within the time allocated by the branch. Now, I'll take up the questions and answer. And any other issues which you want to discuss with me, you are most welcome to ask. Sir, there are a few questions which has been already posted in chat. So if you can take one by one those questions. Sir, if you can start asking questions, and I'll Sure, sir. I'll do that. बताइए sir. Just a minute, sir. So the question is, in NFB, should we take outstanding balance or the sanction amount? Sir, जो भी होगा, जो भी higher of the two would be taken as the exposure. Higher would be taken as the exposure. In case of threshold limit, sample taken details has to be given on account-wise number? Yes, it has to be given, sir, for all cases which are under sample. Whether it is large advances, it is other advances which is not covered within the definition of large advances. सबका आपको sample यहाँ पर disclose करना है. सबका करना है. Okay. In quick mortality, whether we should have checked for all the NPAs or only the fresh NPA during the financial year? So fresh NPAs during the financial year you will have to check. Old NPAs पिछले साल में जो कुछ mortality थी उसको आपको check करने की जरूरत नहीं है. Right. So 12 months के अंदर वाली ही check करनी पड़ेगी. हाँ, जो इस साल में NPA हुए उसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लोन कब का है या डेट ऑफ टेक ओवर, अगर टेक ओवर का केस है और वो अगर विद इन 12 मंथ्स का है तो फिर वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है. Sure. So somebody wants circular number for short term review. Sir, I have already mentioned that I'll send to the branch the circular also and then they can forward it to everybody. Okay. So can you share that PPT over here? Is it possible for you? I'll send it little later, sir. इसमें मैं एक और value addition करना चाह रहा हूँ, frankly. The circular came on August 21st, 2020, sir. तो आप उस circular को refer कर सकते हैं. 21 अगस्त 2020 का circular है, sir. Okay. So in case of Sarsai, gold loan is also to be is required. Sir, generally जहाँ पे आप देखिए चार्ज क्या है कि दो तीन तरह के चार्ज हैं. चार्ज है विच इज इक्विटेबल मॉर्गेज, वन इज व्हाट वी कॉल एज बेसिकली रजिस्टर्ड मॉर्गेज, एक जिसको हम कह देते हैं नेगेटिव चार्ज भी कह देते हैं, और एक होता है जिसमें हमारा लियन हो जाता है और जिसको हम अपने पास ही रख लेते हैं. ठीक है, तो उन केसेस के अंदर सरसाई का चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. जैसे गोल्ड ज्वेलरी लोन में जहाँ पे ज्वेलरी हमारे पास पॉन हो गई तो उसकी वहां पे चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. राइट. ओके. So what is related accounts in lien of deposits? सर related accounts कुछ भी नहीं है सर. आप प्लीज समझिएगा कि जो ये बेसिकली एरिया है ना, बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे दिमाग में एक रहता है कि ये अकाउंट जो है lien against deposit, ये तो बहुत सिंपल अकाउंट है, इसमें तो हमारे को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. तो कई बार हम इन चीजों को छोड़ देते हैं. अब इसके अंदर वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि आपको वो अकाउंट को ध्यान से देखना है, उसमें लियन मार्किंग को ध्यान से देखना है. और जनरली और कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मेन जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि बैंक समटाइम्स बिकम वेरी जिसको कहते हैं ना इजी हो जाता है लोगों को लेके कि यार ठीक है ये तो पैसा मेरे पास ही पड़ा है, तो रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन करना ही भूल जाता है या लियन मार्किंग करना ही भूल जाता है.
और इसमें एक चीज और भी है जो क्रिटिकल है, इसको आपको याद रखना है कि प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए कि जो अकाउंट, अगर दो तरह की एफडीज होती हैं, एक जिसमें इंटरेस्ट पे आउट होता है, एक जिसमें क्यूमुलेट होता है इंटरेस्ट। तो जिसके अंदर इंटरेस्ट पे आउट होता है, इट हैज टू बी आल्सो इंश्योर इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट डिपॉजिट कि उसका जो इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है, वो जनरली जब एफडी खुलती है तो उसमें वो उसका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट होता है, उसमें जिसके अंदर भरा हुआ होता है, उसमें उसको चेंज करके उसके लोन अकाउंट को कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोन अकाउंट का बैलेंस जो बढ़ता जाता है विद एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, और एफडी का बैलेंस उतना ही रहता है, तो कई बार क्या होता है कि जो एफडी है वो कम हो जाती है और लोन का बैलेंस ज्यादा होता है। बढ़ जाती है। So it is always advisable कि जो उसका इंटरेस्ट पे आउट अकाउंट है, that should be now changed from that savings or current account to the that loan account, so that उसका इंटरेस्ट उसमें जाता रहेगा, तो एटलीस्ट वो अकाउंट का बैलेंस उतना इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, राइट सर, मैंने आपको एक क्वेरी भेजा है चैट में, इफ यू कैन रीड द सेम। चैट में भेजिए। ओके, आई हैव सेंड यू द क्वेरी लास्ट में आइए ना आपकी क्वेरी। अच्छा, फॉर रिन्यूअल वाली। फॉर रिन्यूअल 21 अगस्त 2020 सर्कुलर यूजेस वर्ड शुड, bank should avoid frequent and repeated ad hoc short review renewal of rental without justified reasons. So is it make any difference? सर देखिए, डिफरेंस जो आपकी जितना स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व होगा उससे डिफरेंस आएगा सर। अल्टीमेटली कोई सर्कुलर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, ये तो हमारा रिजॉल्व है जो हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम आज तक भी वो शॉर्ट रिव्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते आए हैं जहाँ पे शॉर्ट रिव्यू गोज बियॉन्ड 180 डेज। ये सर्कुलर नहीं था जब भी नहीं हम एक्सेप्ट करते थे, ये सर्कुलर आने के बाद तो इट स्ट्रेंथन्स माय हैंड भाई दी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होता अगर आरबीआई इसमें कहीं पे कुछ लिमिट बना देता कि भाई इससे बियॉन्ड शॉर्ट रिव्यू के बेसिस पे नहीं चल सकता, वो उन्होंने नहीं किया। देयर आर सम रीजंस आल्सो समटाइम्स कि वो इतना स्पेसिफिक नहीं लिखना चाहते, बट इट क्लियरली गिव्स एन इंडिकेटर कि these kind of activities where short review is allowed to continue for 1 year or more than 1 year also, this is something which is not acceptable even as per the RBI. Okay, so somebody has asked that is there any time limit to get stock audit done? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको पॉलिसी ऑफ द बैंक देखनी पड़ेगी, और मैंने बताया एनपीए के केसेस में अगर 5 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है तो मैंडेटरी है स्टॉक ऑडिट करना। So complete recovery includes unserviced and unapplied interest? I think somebody is actually telling his version, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। जो अकाउंट का अपग्रेडेशन होता है, I think he is referring to that, तो उस केस में not only the जो unrecovered balance है in terms of that installment में भी it has to be recovered, पर जो unaccounted interest है जो हमने डेबिट नहीं किया था because the account slipped into NPA category, या कोई हमने डीरिकॉग्नाइज कर दिया था इंटरेस्ट, उसकी भी फुल रिकवरी होनी जरूरी है। I think he is clarifying that, which is absolutely right. So IBC has initiated by any other creditors. How can we find out this? सर इसका तरीका ये है कि आपको बैंक से लिस्ट लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप आईबीसी की साइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे ऑल केसेस अंडर आईबीसी का मेंशन होता है, उससे आप रीवेरीफाई कर सकते हैं। How to verify entries in office accounts or inter-office accounts? Bank officials generally say the accounts are not visible at the branch level. नहीं सर, ब्रांच में सब कुछ विजिबल है, वो आपको विजिबल करवाना चाहें तो अगर वो विजिबल ही नहीं होगा तो आप ऑडिट कैसे करेंगे? राइट, तो वो आपको थोड़ा सा देखिए, हर एक ऑडिटर के पास एक बहुत अच्छा हथियार है जिसको यूज करिए, वो है कि सर इसके बिना मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, तो इसको इस हथियार को बार बार यूज करते रहिए, आपको सब वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा जो अभी तक इनविजिबल। How to confirm the residential status at the time of renewal in case of it is generally through, if you first you'll have to understand the definition of resident and a non-resident under FEMA, which is very different to what we see in the income tax act. So basically FEMA की जो definition है, that is not really on the period of stay, it is the intention of stay. तो अगर intention of stay is in India is for an indefinite period of time, तो उस केस में he becomes a resident। तो वो बेसिकली आपको देखना है, वो डिक्लेरेशन कस्टमर देगा एंड बेस्ड अपॉन द पासपोर्ट कॉपी विल हैव टू वेरीफाई वेदर ही हैज बिकम अ रेसिडेंट। Right. Sir, IS audit is applicable to all banks or is there any specific limit? Sir, IS audit is applicable to all banks. In certain areas it is mandatory also, but it is really the choice of the bank. Other than those areas, कहाँ पे वो IS audit करवाना चाहिए। Migration audit this time would be very critical. If the migration audit has not been done, you'll have to appropriately consider even looking at bring it through your main statutory audit reports, क्योंकि आपकी बार एक चैलेंज ये भी होगा जहाँ पे मर्जर हो रहा है ब्रांचेस का। Yes. आप ओपनिंग बैलेंसेस किसके लेने वाले हो? Right. Which branch?
which branch, Right. और उसको डाटा जो है वो कितना अप्रोप्रिएटली मर्ज हुआ आपके डाटा के साथ, वो करेक्ट मर्जर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि यू विल बी रिलाइंग अपॉन द सिस्टम, एंड इफ दैट माइग्रेशन ऑडिट हैज नॉट बीन डन, तो मेरे को कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं आएगा, तो हो सकता है मुझे उसको अप्रोप्रिएटली अपनी मेन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा. So which are the exceptional reports we should focus on? So there are a lot of exception report. It is dependent upon bank to bank. You will have to obtain the list of all exception report at the branches. दो तरह की एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ. एक तो जो हर एक बैंक में जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जब आप ट्रांजैक्शन सिस्टम में करने जाते हैं, तो एक होती है जिसको वार्निंग कहते हैं, कि वो एक वार्निंग देता है सिस्टम आपको कि भाई आप ये कर रहे हो, उसके बाद वो अलाउ कर देता है ट्रांजैक्शन, आपको कुछ नहीं करना यूजर को. एक होता है जहाँ पे वो आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है कि आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आर यू श्योर, और आपको एक स्पेसिफिक कोई बटन दबा के कहना पड़ता है कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ये कर रहा हूँ, और करना पड़ता है, उसको कहते हैं एक्सेप्शन. और थर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एरर, जिसको बैंक ब्रांच अलाउ नहीं करेगी, दैट सिस्टम वुड नॉट अलाउ. सपोज यू आर डिपॉजिटिंग कैश इन एन एनआरई अकाउंट, तो वो आपको एरर देगा कि भाई ये अलाउड ही नहीं, आप किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. तो एक तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है. एक होती है जो बैक एंड पे जनरेशन होती है बहुत सारी एक्सेप्शन रिपोर्ट, और जनरली इंट्रानेट पे किसी एक लिंक पे उसको डाल दिया जाता है एक फोल्डर के अंदर, तो वो आपको बैंक से पूछ के वो फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा और अपनी मतलब की रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा. राइट. सर एक और क्वेश्चन मैंने आपको चैट में भेजा है, सो इफ यू कैन सी. ओके, हाउ टू चेक वैल्यूडेटिंग ट्रांजैक्शंस. अब वैल्यूडेटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आपको लिस्ट लेनी पड़ेगी बैंक से ऑफ ऑल दी वैल्यूडेटिंग ट्रांजैक्शंस व्हिच दे हैव डन. इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि वैल्यूडेटिंग ट्रांजैक्शन को चेक कर सकें. Generally, in the exception report generated on a daily basis, all value-laden transactions are considered the exception. Okay. In case of online FD, how to check for lien marking on the FD if there is no physical receipts or lien marking is mandatory. अगर उसके अगेंस्ट लोन अगेंस्ट FD दिया जा रहा है, तो as per the RBI guidelines उसकी प्रिंटिंग होनी जरूरी है और उस पर स्टार्ट लेना जरूरी है. If it has not been done by the bank, then it has to be appropriately reported. I think so there are 2-3 more questions if we can address as of now. Can we? Sir, within 2 minutes we'll have to go. Yeah, sure, sir. I know there's a time constraint. I understand, sir. Yeah. There are 2 questions. Fast, quickly, if we can do it. There is one question that in the main report reference to be given in LFAR, but not vice versa. Yeah, absolutely. Okay. How to consider the ex gratia interest as per the Supreme Court judgment yesterday? Sir, ex gratia interest जो है वो आपका ब्रांच लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है. It is done centralized because कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं हो रही ex gratia. It is done centralized through a system, through a software program which would calculate it, and then the entries are done. Of course, जो अब नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें ex gratia payment have to be done for cases other than that 2 crore limit which was earlier there. So वो decentralized office will do it. I don't think at the branch level you will have to any base check for that calculation. Okay. So I think there is one more. Can you please mention again in brief correct and valid credit rating? तो करेक्ट तो मैंने बता दिया, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वो सिस्टम में क्या फीड हुई. वैलिडिटी मैंने आपको बताई, यू विल हैव टू रेफर टू दी दैट वेबसाइट ऑफ दैट सीआर एजेंसी, दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड सी कि वो आज की डेट में वैलिड है कि नहीं है. Whether advance received from the customer should be deducted from stock or Sir, it can be depends on the policy of the bank. अगर एडवांसेस को आप कम करेंगे तो एडवांसेस गिवन को भी फिर आपको कंसीडर करना चाहिए टू गिव दैट पैरिटी. Can we check if there is a lien marked on LIC policy or not? सर उसके अंदर स्टैंपिंग होके आती है, एक अलग से सर्टिफिकेट ऊपर से लग के आता है फ्रॉम दी LIC. जब वो करते हैं उसके ऊपर वो लेते हैं, तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं. अदरवाइज फिर अगर आप किसी पे शक है कि ये एक्चुअली में हुआ है कि नहीं हुआ, तो LIC के आप किसी भी ऑफिस में जाके उसको चेक कर सकते हैं. Yes, I think the last question is that max 2 short reviews are allowed with a total period of 12 months. Is it right or not? It is absolutely right, sir. Maximum 180 days, beyond which अगर regular renewal नहीं होता तो account would slip into NPA. Right. I think this is it, sir. I think we have tried to cover everybody's query as of now. So, sir, thank you so much for your patient hearing, sir. I'll skip the other part of you thanking me, maybe, but I really enjoyed this session, and thank you so much for inviting me here. I'll leave the session, and you'll have to excuse me for that abrupt leaving of the session. I understand, sir. But thank you so much, sir. Thank you so much for joining us, sir, and letting us know. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.